ओम शांति ओम शांति। हाय 5000 कंसर्न। नमस्कार, स्वागतम, वेलकम to all. Today is International Mother Language Day. Maximum of us has mother language Hindi, but then also various dignitaries have joined from South India and various dignitaries have joined from foreign also. I welcome all dignitaries on the dais of the dais. On today, our journey पवन जी आपका आवाज कट गया जी। So he is muted. Now open. Namaskar, Swagatam, welcome. On behalf of Independent Research Ethics Society, we welcome you all dignitaries on the dais of the dais. I welcome all seniors. Today is International Mother Language Day. Though our mother language of maximum persons is Hindi, but as various dignitaries are joined from South India and various dignitaries from abroad, so I welcome you all and would like to communicate that today we have a panel of dignitaries. I welcome Dr. Premchand Shastri ji. I welcome Dr. Unnikrishnan ji, Dr. P. Nandakumar ji, Dr. Ramadas P V ji, Dr. Santosh Kumar Sharma ji, Mr. Jaydev Gamot, Dr. Vineetha V. Kurup, Professor Panduranga. All are dignitaries and all are favoring Sanskrit from last so many decades, not only favoring but promoting at each and every step of their life. So I communicate my salute to all dignitaries of Sanskrit. Promotion of Sanskrit is very necessary in this age and era because that was our original language where very complicated science and complicated mathematics were communicated in easy shlokas. So I would like to hand over today's moderation responsibility to Sri Madan Thangavelu sir. Madan Thangavelu sir, welcome. पवन जी नमस्कार। To inaugurate the session, Madan Thangavelu sir, please. पवन जी नमस्कार, greetings. It is greetings from UK, from Cambridge. Thank you. It is a delight to be here with everybody on this day, and it is intimidating to be a part of this group filled with scholars and teachers in India. So, number one, I shouldn't talk too much. Number two, because we are so many people in this gathering today, we want to get the best out of all the people who come together. And I feel the best way to do this is to have a slightly change of the format. And that format is not a major change, just so that we capture everybody's ideas as a quick first round, and then see what are the points they present that we can elaborate on, perhaps with questions from the audience, etc. So this is one suggestion, Pawanji, just a thought that to make it very rich and colorful, because you have brought so many people together, number one. Number two, the question about mother language is central to any culture. And it's very, very important that we appreciate this. And I particularly want to highlight one issue here about the connection between language and human physiology. And this is the power of, this is what Sanskrit tells us, that there is a very deep connection between the words, the sounds, and human physiology. And this is where I see an interface between the language and systems of health and healing and medicine. So that is the second point. The third point I just want to touch very briefly on is how do we give Sanskrit
the global presence that it deserves. A lot of people in the world do not know that the grammar, Sanskrit grammar as given to us by most recently by Panini, is about 500 BC, 2,500 years old. And even within India, the ability to convey this confidently is still with only a very small number of people. And this is a difficulty, you know. There are 3,000 X number of rules that Panini gave us. And how come our students, our youngsters don't know about these things, you know? That is another important point. Finally, before I give the floor to our distinguished participants, I just want to raise one last point in the context of Ayurveda. You know, every year in Germany, there is an event held in an institution called, in a small village called Bierstein. It is near Frankfurt, and it may be the 22nd or 23rd year that people are coming from around the world to interact and learn and discuss Ayurveda. And at one of those events, that institution in Bierstein was driven by Professor S.K. Mishraji from BHU, contemporary of Professor R.K. Singh and student of Udupa. And when on one event, we were sitting and discussing very late in the night because we have so many visitors from around the world, and we were discussing whether Sanskrit is necessary for Ayurveda. And Mishraji was seated at a distance and he was listening carefully, and it was getting late and he wanted to go to bed. And he came up to us in the next table and he said, you know, can I say a few words? And said, yes, please, sir. And he said, you know, I've been listening to your discussion about whether Sanskrit is needed for Ayurveda because it's getting international, etc. And he says, I have a very humble comment here. And my comment is, we may not need Sanskrit for the globalized form of Ayurveda. But if you know Sanskrit, you will enjoy it. And I thought this was the most amazing comment that could have come out after carefully listening from a distance to all that we were discussing. Today, Agnihotriji was very kind. He has sent me the new document about the benchmark, the World Health Organization's benchmark for Ayurveda. And it makes us all want to just, for a moment, just sit and consider the importance of Sanskrit when we are trying to convey this to the world, because all the texts are written in Sanskrit. And there are so many documents still to be uncovered. If you don't understand this language, we will never get to the bottom of the truth and the depth of this knowledge. Finally, I just make one last comment. Within this language confusion, there are two strong lineages of languages in India. On the north, we have Sanskrit. In the south, we have the Dravidian languages. And high among that is Tamil. And I'm so happy that Ramadas Ji is here because he comes from the land of Malayalam, and Malayalam is a very special language which has successfully combined the strength of both Tamil and Sanskrit. And for all of that effort, we must point to the great scholars, and particularly Adi Shankaracharya. And this is a very important thing for India and for Kerala because he was born in Kerala. And he, at a very young age, he did many things. And he wanted to take us, he wrote the commentaries on the many Upanishads at a very young age. And he traveled around India. He set up all the 4 mutts in different places. And he came back to Thrissur and he set up 4 madams around the Shiva temple there, of which only one remains. Perhaps Ramadas Ji can tell us a little more about this. That only Vadake Madam exists now. And unfortunately, the 3 other Vedic madams that Adi Shankara wanted are not there. So this is a brief introduction. How do we bring back that richness that great minds like Adi Shankara used to argue for a new darshana? And there is so much more in here, the connection with Ayurveda, the connection with yoga, and all of that, and the rich texts that are waiting. I leave it there, and I invite all our participants from across the country to
teach us and take us through what is on their mind on this special day in terms of where the strengths are, where the limitations are, how it can interface with Ayurveda, how it can interface with the other languages. Nicely introduced, sir. Nicely introduced. Thank you so much. So with those few words, I open this So up. now I would like to invite, before our respected Premchand Shastri ji for inauguration, I would like to invite Govind Shukla ji is with us today. Professor Govind Shukla ji, Principal, Jodhpur Ayurveda University Ayurvedic College, and he will be guide for us in this motivation force, and President of Vishwa Ayurveda Parishad, National International President. Welcome Shukla ji. So Namaskar. शुरुआत के आशीर्वाद आपसे। नमस्कार। आदरणीय पवन जी, परम श्रद्धेय अग्निहोत्री जी, मदन जी और देश भर से आज इस दिवस पर संस्कृत भाषा को लेकर के अपना मंतव्य रखने वाले सभी आदर के योग्य परम सम्माननीय विद्वद्जन, हर दिवस को लेकर के पवन जी एक अपनी सोच के साथ में उस कार्यक्रम को रखते हैं। आज जब मैंने देखा इस विषय को, तो मैं स्वतः 6 बजे का समय मैंने सुबह तय कर लिया था कि मुझे इस कार्यक्रम में रहना है, क्योंकि संस्कृत को जितना मैं अनुभव कर चुका हूं या समझता हूं कि संस्कृत हमारी इस देश की जो वैज्ञानिक परंपरा है उसको यथार्थ रूप में समझने के लिए, वैज्ञानिक परंपरा हो चाहे आध्यात्मिक परंपरा हो, इस देश का जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये देश विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, तो विश्व गुरु था तो उसके प्रमाण क्या है? इस देश का जो अद्भुत ज्ञान विज्ञान वो मिलता है, तो वो उसको हम यथार्थ रूप में अनुभव, जैसा मदन जी भी बता रहे थे, उसको हम तब समझ सकते हैं जब संस्कृत भाषा का हमें पूरी तरह से बोध होगा। संस्कृत भाषा इस देश की आत्मा है, व्यापक रूप से इसका प्रयोग हुआ है। मुझे एक श्लोक वाल्मीकि रामायण का याद आता है कि जब हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे किस भाषा में बात करनी चाहिए। वाचम में यदि वदिष्यामि द्विजाति संस्कृतम रावणम मन्यमाने सीता भीता भविष्यति। मैं यहाँ पर यदि संस्कृत में बोलूंगा तो मुझे रावण का ही कोई आदमी समझ करके सीता भीता भविष्यति, सीता भयभीत हो जाएगी। इस देश के अंदर ऐसे व्यक्ति, ऐसी सोच वाले, रावण जैसी सोच वाले, उस नगर के अंदर रहने वाले जिनकी वृत्ति विपरीत थी, वो भी संस्कृत में बोलते हैं। जब राजा भोज लकड़हारे को देख करके उससे कहता है कि किम भारम वादते, तो लकड़हारा बोलता है कि भारम न वादते राजन यथा वादति वादते। मुझे इस लकड़ी के गट्ठर का भार मुझे नहीं लग रहा है राजा, लेकिन जो आप संस्कृत का अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो वो मुझे कष्ट दे रहा है। इस देश के अंदर एक लकड़हारा, एक श्रमिक भी राजा की भाषा की संशोधन करने की क्षमता रखता था। मैं रसशास्त्र का व्यक्ति हूँ। रसशास्त्र में एक बहुत छोटी सी हमने एक कथा पढ़ते हैं कि व्याड़ी तेल सिद्धि करता है और तेल सिद्धि के लिए वो रक्तामलक को बार बार पढ़ता है और रक्तामलक से वो बार बार पके हुए आंवले का प्रयोग करता है। कहने का मतलब भाषा ही नहीं, भाषा का भाव क्या है। आयुर्वेद के विज्ञान को समझने के लिए संस्कृत का बिल्कुल मौलिकता के साथ में उसके भाव तक को समझना होगा। व्याड़ी बार बार परिश्रम करता है और परिश्रम करने के बाद में जब तेल सिद्ध नहीं होता है, बार बार वो पका हुआ आंवला लेता है और तेल सिद्ध नहीं होता है, तो अपने ग्रंथ के पन्नों को नदी में प्रवाहित करता है और कहता है कि मेरा सारा जीवन का धन इस तेल को सिद्ध करने में लगा है, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान नहीं हो। तो उस पुस्तक के पन्नों को आगे बैठी हुई गणिका, एक वैश्या उनको एकत्रित करती है और वो उसको पढ़ करके फिर उनको एकत्रित कर लेती है और पुनः व्याड़ी के पास आकर बोलती है कि ऋषि प्रणीत ग्रंथ है, मिथ्या नहीं हो सकता है। वो भी उस संस्कृत के पन्नों को समझती है, उस भाषा को समझती है। मेरा मतलब इस देश के अंदर व्यापक रूप से और समग्र रूप से संस्कृत भाषा का प्रचलन रहा। हमारी ज्ञान विज्ञान की विधाएं इसी के अंदर से मूल भाव से प्रसरित होती हैं। तो आज पवन जी ने इतना मातृभाषा के इस दिवस पर संस्कृत के विद्वानों के मनोविचार, उनके भावों को हम सब सुनेंगे, ऐसा अवसर पूरे देश में सभी बंधुओं को उन्होंने जो अवसर दिया है उसके लिए मैं
पवन जी का आभार व्यक्त करता हूँ, मदन जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और आज के लिए जितने भी हमारे संस्कृत के इस विषय पर बोलने वाले मर्मज्ञ विद्वान है, उन सभी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन। और इस कार्यक्रम की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। मैं अब आदरणीय प्रेमचंद शास्त्री जी, एक्स वाइस प्रेसिडेंट उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी, हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन और विश्व आयुर्वेद परिषद के लिए डेडिकेटेडली कर्तव्यरत रहने वाले मोटिवेशनल डिग्निटरी आदरणीय प्रेमचंद शास्त्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। सर्वेभ्यो नमस्कारः। मम ध्वनि श्रूयते पवन महोदय? पवन जी, मेरी आवाज अवश्यमेव सर, अवश्य। नमस्कार जी, सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्मिन् सम्मेलने नमस्कारः। नमः। न केवलं भारतवर्षात् अपि तु संपूर्ण विश्वात् अपि अनेके विद्वांसः समुपस्थिताः। विशेषतः महतः आनन्दम् अनुभवामि प्रोफेसर आलोक शर्मा महोदयम् अस्माकं विश्वायुर्वेद परिषदः यशस्वी अध्यक्षवर्यः आचार्यः गोविंद शुक्ल महोदयम्, येषां प्रास्ताविकम् उद्बोधनम् इदानीम् अस्माभिः श्रुतम्। तादृशः महान् विद्वान् मदन मोहन महोदय, अन्ये रामदास महोदय, सर्वेषां प्रति मम प्रणामः। संस्कृतस्य प्रास्ताविकविषये इदानीं गोविंद शुक्ल महोदय यदुक्तं, प्रारंभे मदन महोदय अपि यदुक्तं, तस्मिन् क्रमे अहं तकनीकी रूपेण किमपि न वदामि, आयुर्वेद शिक्षा नीति विषये किमपि वदामि। अहं प्रायः 34 वर्षेभ्यः आयुर्वेद महाविद्यालये संस्कृत अध्यापक रूपेण अध्यापनं करोमि। एतेषु 34 वर्षेषु यदहं ज्ञातवान्, यदहं अनुभूतवान्, तदेव वदामि। यदि भवतः सर्वेषां सुविधा दृष्ट्या सहमति स्यात् तर्हि अहं हिंदी भाषायां वदामि। रामदास महोदय, भवान् वदतु, संस्कृतेन वदामि अथवा हिंदी भाषायां वदामि? हिंदी भाषायां वदतु भवान्, सर्वेभ्यो ज्ञातुं शक्यते किल? अस्तु, बहु धन्यवादः। तदेव उत्तमं भविष्यति। आयुर्वेद की शिक्षा नीति की दृष्टि से संस्कृत की जैसी दिशा, दशा और दुर्दशा भी बोलूं तो जैसी सामान्य शिक्षा नीति में आजादी के बाद से लेकर के हुई है, उससे कहीं अधिक आयुर्वेद शिक्षा नीति में है। अभी हम सब ने इसके महत्व को तो स्वीकारा, लेकिन आयुर्वेद पढ़ने कौन आते हैं? जो आयुर्वेद पढ़ना नहीं चाहते, और जो आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं उनको हमने नियम पूर्वक आयुर्वेद में प्रवेश से वंचित कर दिया। मैं इस सारी परिस्थिति को 3 शीर्षकों के रूप में रेखांकित करता हूं। आयुर्वेद शिक्षा में संस्कृत को एक विषय के रूप में हमने कितना अन्याय किया। तो रेगुलेशन 1986, मैं 1988 में अध्यापक बना था, तो संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम था, जो कैरिकुलम था, 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र थे, 50 अंक का मौखिक परीक्षा था, 300 लेक्चर थे। आगे कम करके वो 2 प्रश्न पत्र हुए, 200 अंक रहा,
50 अंक का मौखिक परीक्षा रहा, फिर 2000 का MSc MSR बना, तो उसमें संस्कृत का मात्र 1 पेपर कर दिया गया और पीरियड भी 90 किए गए। यदि वो हमारी दक्षिण भारत की बहन वो रहती चेयरमैन तो शायद ये 90 लेक्चर अभी तक होते। किसी तरह से 200 लेक्चर तो पढ़ाने को बचे हैं। अब आप बताइए, हम कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है तो निष्ठडंगो वेदो ज्ञेय अध्येयश्च, 6 अंगों सहित वेद यानी ज्ञान, और इस वेद ज्ञान का महत्वपूर्ण शाखा आयुर्वेद ज्ञान, तो उन 6 अंगों में से शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, और उसमें भी व्याकरण यानी संस्कृत भाषा ऐसा मान करके बोले तो 12 भी वर्षई अध्येयम व्याकरणम। आप बताइए, एक आयुर्वेदाचार्य बनने के लिए क्या ये पर्याप्त था? अस्तु, तो इस विषय के लिए तो मैं अभी गोविंद शुक्ला जी सुन रहे होंगे। कल सौभाग्य से मुझे उनसे बात करने का सौभाग्य मिला और 16 फरवरी को NC आसयम ने अपना MSc जारी किया। तो आप में से जो लोग भी उधर जुड़े होंगे और विशेष रूप से पवन शर्मा जी को आप मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, तो मैं आप सब विचार परिवार के लोगों को और बधाई देता हूं, क्योंकि जयंत देव पुजारी जी उसके अध्यक्ष हैं। तो ये भेदभाव तो एक काफी हद तक दूर हो गया है जो 16 फरवरी 2022 को MSc जारी हुआ है। दूसरा भेदभाव 1986 के रेगुलेशन से पहले और 1986 के रेगुलेशन के बाद क्या था कि उससे पहले संस्कृत पाठशालाओं से जो आयुर्वेद की शिक्षा का इतिहास आता है, जो उत्तर मध्यमा, प्राक शास्त्री आदि, जिनमें 12वीं वर्षई अध्ययन व्याकरण का पालन होता था, ऐसे पढ़े लिखे लोग आयुर्वेदाचार्य बनते थे। और उनमें से प्राय अधिकांश को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की बात छोड़े शायद अंग्रेजी का भी अल्फाबेट किसी को लिखना नहीं आता था। और वो सब बड़े अच्छे अच्छे शल्य चिकित्सक, काय चिकित्सक और वो बनते थे। हम यहाँ 60 प्लस माइनस के लोग बैठे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। उसके लिए 1986 के रेगुलेशन से पहले इंटरमीडिएट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड संस्कृत आते थे, लेकिन वो मिलना बंद होते थे, क्योंकि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी पढ़ेगा वो अंग्रेजी साइंस पढ़ता नहीं, वो तो अंग्रेजी पढ़ता। तो और उनके लिए पहले व्यवस्था थी कि जो संस्कृत पाठशाला पद्धति से पढ़े हैं और उनको अभी विज्ञान पढ़ाने की आवश्यकता है, तो प्री आयुर्वेद पाठ्यक्रम था। ऐसे ही जो साइंस वाले हैं उनके लिए संस्कृत, और जो संस्कृत वाले हैं उनके लिए साइंस का प्री आयुर्वेद था। और ये अभी भी अरबी फारसी मदरसों से जो फाजिल परीक्षा उत्तीर्ण छात्र रहते हैं, मदरसों से पढ़े हुए, और वहां भी उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और अंग्रेजी भी शायद पढ़ने को नहीं मिलता है, और वो अभी भी BUMS में बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में प्रवेश पाते हैं। तो मेरा प्रश्न आप सबसे है, आप सब लोग संस्कृत के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, हम पहले नहीं कर पाए, अभी ये अधिकार दिला सकते हैं क्या? क्योंकि आयुर्वेद की अपनी शब्दावली अलग है, अपनी सारा सिद्धांत अलग है, दर्शन अलग है, और उसको जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चाहिए उतना हम उसको पढ़ा सकते हैं उतने ही टाइम में, जितने टाइम में जो ये अभी की पद्धति में छात्र आ रहे हैं और उनको संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ऐसा करके
संहिताओं को और उनके गूढ़ अर्थों को जानने वाले लोग हमको मिल सकते हैं, जिनकी कमी अभी देखी जा रही है। तो एक ये अन्याय किया गया दो तरह से। एक तो जब आवश्यक था कि साइंस और संस्कृत पढ़ा हुआ दोनों होना चाहिए, और संस्कृत पढ़े हुए मिलना बंद हुए, तो साइंस पढ़े हुए लोगों के लिए नीति निर्माताओं ने व्यवस्था दे दी कि बीएमएस के कैरिकुलम के अंदर संस्कृत एक विषय रहेगा। तो वैसे ही संस्कृत पाठशालाओं से पढ़े हुए लोगों को जो आयुर्वेद को समझने के लिए उन विज्ञान के छात्रों से बहुत अधिक उत्तम पात्र हो सकते हैं, होते थे, प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं। तो हमने उनके लिए भी वैसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि उस पीरियड में वो विज्ञान पढ़ लेंगे और इतने समय में उतनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं इस मंच का प्रयोग इस रूप में करता हूं कि ये अन्याय दूर करने में हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं क्या? एक भेदभाव, दो भेदभाव, तीसरा भेदभाव जो मैंने अपने 34-35 वर्षों के आयुर्वेद कॉलेज में अध्यापन काल में अनुभव किया। संस्कृत विषय के साथ उपेक्षा एक विषय, परंतु संस्कृत अध्यापक के साथ भेदभाव और अन्याय दूसरा विषय। जब सब विषयों के लिए पृथक विभाग है और उसकी फैकल्टी को जिस तरह से महत्व, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है, तो वही प्रतिष्ठा और सम्मान संस्कृत के शिक्षक को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी तक के रेगुलेशन में लिखा जाता है फैकल्टी के लिए 1 एक्स्ट्रा संस्कृत टीचर, और जब विजिट होगी तो वो है या नहीं है, और वो चाहे कोई मिट्टी का पुतला, एक बिल्कुल सबसे बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, 3rd डिवीजन, जो सबसे सस्ता बाजार में सबसे सस्ती सब्जी होती है, वैसा उसको ला करके रख दिया जाता है। अब आप कल्पना करिए कि जिन छात्रों ने कभी संस्कृत तो छोड़िए, ठीक से देवनागरी लिपि भी जिनको लिखना नहीं आता है, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं। 33-34 साल से मैं पहला प्रश्न बच्चों से करता हूं, बच्चा आपने संस्कृत नहीं पढ़ी, मैं उत्तर भारत का अध्यापक हूं तो हिंदी तो पढ़ी होगी, आप बताइए देवनागरी लिपि में, हिंदी में कितनी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ष में एक भी छात्र ने अभी तक मुझे वर्णमाला नहीं सुनाई, स्वर भी नहीं सुनाए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि जिसको अंग्रेजी की ABCD नहीं आती हो, वो MBBS, BTech, BR की ये बन सकता है क्या? लेकिन हम 60-70 वर्षों से, और संस्कृत छोड़ो, हिंदी की वर्णमाला जिनको नहीं आती उनको BMS, MD और बना रहे हैं। ऐसा कहना, उनकी कोई अवमानना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। वो बहुत योग्य हैं, बहुत प्रतिभावान हैं और अपने परिश्रम के बल पर अपना अपना कंट्रीब्यूशन भी देते ही हैं, परंतु छिन्ने मूले नैव शाखा नैव पत्रम, ऐसी स्थिति है। और उसके कारण से मैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से आता हूं। संस्कृत अध्यापक को अन्य अध्यापकों के समान वेतन मिलना चाहिए, तो उसके लिए मुझे स्वयं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर प्रमोशन के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और मैंने तो पा लिया। ये मेरा आत्म प्रशंसा का विषय नहीं है। जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में आज की तारीख में भी 1100 रुपए महीना पर संस्कृत अध्यापक काम करते हैं। और प्राइवेट कॉलेजों की स्थिति तो आप सब जानते ही हैं। तो क्या हम अपने प्रभाव का प्रयोग आयुर्वेद के हित में
आयुर्वेद शिक्षा को अच्छी बनाने के लिए यदि संस्कृत आवश्यक है तो संस्कृत को पढ़ाने वाला योग्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आने वाले MSR में उसकी क्वालिफिकेशन में ये डाला जाए कि वो निश्चित रूप से संस्कृत में नेट क्वालिफाइड हो, PhD हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, वो योग्य हो, संस्कृत को उसको इतनी क्षमता हो कि वो गूढ़ शब्दों की निरुक्ति व्युत्पत्ति भली भांति कर सकता हो और उसका चयन अच्छे प्रकार से योग्यता के साथ साक्षात्कार पूर्वक होना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो ही वो आयुर्वेद के छात्रों को जो उनको जैसा क्योंकि उनकी तो संस्कृत पढ़ने की रुचि ही नहीं होती। 32 साल का अनुभव भी यही है कि छात्रों को संस्कृत पढ़ाने के लिए बहुत अधिक रोचक अध्यापक, बहुत अधिक उनको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला अध्यापक चाहिए। एक प्रसंग मुझे कहीं सुनने को मिला था। किसी घर में गए, बच्चे को पूछा आप क्या क्या पढ़ते हो, तो बताया कि मैं जर्मन पढ़ता हूं। कि जर्मन क्यों पढ़ते हो, संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते? तो उसने कहा संस्कृत की मैडम बहुत खराब है, इसलिए मैंने संस्कृत छोड़ दी। जर्मन की मैडम मुझे बहुत अच्छे से कहानी किस्से सुना करके और बहुत प्यार से, बहुत मीठी भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है, इसलिए मैं जर्मन पढ़ता हूं। तो जब अयोग्य अध्यापक होंगे, मेरिटियस अध्यापक नहीं होंगे, तो वो संस्कृत कैसे पढ़ाएंगे? वो भी उन बच्चों को जिनकी पहले से संस्कृत की कोई बैकग्राउंड नहीं होती, जिनको पहले से संस्कृत की कोई रुचि नहीं होती। वो आयुर्वेद में एक्सीडेंटली आते हैं। अभी फिर से हम लोग उत्तराखंड में थे तो हमने आयुष प्रवेश परीक्षा अलग कराई थी। उसके कारण से कम पहले से ये सोचता था बच्चा कि मुझे आयुर्वेद में जाना है तो मुझे संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। अब इधर तो एडमिशन के दिन तक बच्चे को ये रहता है कि मैं इधर से कैसे मुक्ति छुड़ाऊं, कैसे पिंड छुड़ाऊं, और उसको मौका मिलता है तो एक साल BMS पढ़ करके भी वापस चला जाता है। ऐसी मानसिकता रहती है उसकी। तो क्या हम ये विचार कर सकते हैं कि जो नीट का पाठ्यक्रम है उसमें ये संदेश देने के लिए, पहले जब यूपी उत्तर प्रदेश में इधर का रहने वाला हूं तो जो CPMT UPMT होते थे तो उसमें कुछ अंक का बेसिक हिंदी से ही जुड़ा हुआ, जो हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत रिलेटेड कुछ संधि, कुछ समास, कुछ वर्णोच्चारण की शिक्षा, जिससे कि जो आयुर्वेद के अंदर आते हैं एक संदेश भी जाए, एक उनको बेसिक भी क्लियर हो। अभी ये तो बहुत चुनौती भरा, बहुत कठिन प्रश्न होगा कि क्या आयुर्वेद कॉलेज के लिए, MBBS के लिए, BHMS के लिए और BUMS भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन MBBS और BHMS के लिए अंग्रेजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयुर्वेद के लिए अंग्रेजी जितना जरूरी है उससे जरूरी बेसिक संस्कृत या बेसिक हिंदी उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो क्या इसके लिए कोई विचार करने की गुंजाइश हो सकती है? इस संभाषा में हम जो लोग बैठे हैं, क्या हम अपने अपने प्रभाव का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं क्या? तो इस अवसर पर मैं पवन शर्मा जी को बहुत धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि एक ऐसे मंच पर जिसमें इतने इतने बड़े विद्वान, आयुर्वेद के विद्वान और आयुर्वेद की शिक्षा के लिए संस्कृत का कैसा महत्व है उसको समझने वाले विद्वान यहाँ पर उपस्थित है। तो इस अवसर पर मैं एक भारतवर्ष के नागरिक के नाते से, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे ऊपर पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है। तो क्या हम ऐसा ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए और केवल चिकित्सक नहीं तो शास्त्रों के ज्ञाता पैदा हो, और उसके लिए ऐसा संस्कृत की दृष्टि से कुछ आवश्यक है
तो 3 काम में से एक काम तो हो गया, लेकिन उसका पाठ्यक्रम ठीक से बन जाए। MSR बनते समय अभी पिछले कुछ समय में जो CCIM काम कर रहा था, तो आप लोग जो वैद्य लोग रहते हैं उस पाठ्यक्रम को बनाते समय कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लिटरेचर तो बिल्कुल बेकार है। आप जिस स्तर तक पहुंच चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं आयुर्वेद को जो संस्कृत पढ़ाना, वो आयुर्वेद के टेक्स्ट से पढ़ाना, वो आपके लॉजिक के आधार पर आप तय करते हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि जब आपने प्रवेश किया था तब आपकी मनोदशा कैसी थी कि सरल सुकुमार ऐसा बालक आता है और उस बालक को कौन से टेक्स्ट से अच्छी प्रकार से संधि समझाई जा सकती है, कौन से टेक्स्ट से जिसमें वो एक उसको कोमल कहानी किस्सा हो और उसके आधार पर प्रत्यय, उसके आधार पर समास, उसके आधार पर जो व्याकरण के दूसरे नियम है वो पढ़ाए जा सकते हैं। मैं ये अनुभव करता हूं कि बहुत बहस हुई कि साहब सबको हटा दो, लेकिन मैंने कहा सबको हटा दो पर पंचतंत्र जरूर रखो। एक एक वाक्य में ही उसमें प्रत्यय भी आता है, उसमें कर्मवाच्य भी आता है, उसमें संधि भी आती है, उसमें समास भी आता है और बच्चा कहानी के साथ साथ उसका अभ्यास करता चला जाता है। विशेष रूप से इस विषय में जो हमारे नीति निर्माता हैं, हमारे NCI असम के अध्यक्ष महोदय हैं, आप लोगों को अपने स्तर पर उन तक ये भाव, यदि आपको अपने विद्यार्थी जीवन का भाव स्मरण है, जब आप प्रारंभ में आयुर्वेद पढ़ने आए थे तो उस समय के छात्र को संस्कृत सिखाने के लिए कैसा टेक्स्ट चाहिए, बेसिक संस्कृतम के बाद जब अप्लाइड संस्कृतम पढ़ाएंगे तो इस दृष्टि से भी MSR बनाते समय हमको अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। और जब तक वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में आयुर्वेद के अध्यापक योग्य नहीं आएंगे और योग्य आने के लिए उनको भी वैसा ही सम्मान और वैसा ही अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक वो ठीक बच्चों को जैसा अपेक्षा है वैसा शिक्षण नहीं दे सकेगा। और इसी प्रकार से यदि अभी हो सकता है कि NCI असम यूनानी वालों को, पर मुझे नहीं लगता कि उनको रोक पाएंगे, अरबी फारसी मदरसों से फाजिल पढ़ने वाले। तो यदि अरबी फारसी मदरसों से फाजिल पढ़ने वाले BUMS में प्रवेश ले सकते हैं तो देश भर के गुरुकुल से और संस्कृत पाठशालाओं से पढ़ने वालों के लिए भी ये अवसर मिलना चाहिए। और उस समय 2012-16 के बीच में एक बड़ा अभियान हमने चलाया था, हजारों की संख्या में हस्ताक्षर अभियान भी भेजे थे। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने तो यह घोषणा की थी कि यदि सरकार ये निर्णय करे तो देश भर के बाकी कॉलेजों में वो चलाएं, हम अपनी 100 की 100 सीट गुरुकुल और संस्कृत के छात्रों को दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसा ही हरियाणा में एक आयुर्वेद संस्कृत विश्वविद्यालय खुला था, उन्होंने भी आयुर्वेद फैकल्टी अभी शुरू की थी। तो उन्होंने भी कहा था कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय केवल संस्कृत के लोगों के लिए काम करेगा, लेकिन कानून के अंदर यदि ये व्यवस्था हो तो ये तभी संभव है। तो मैं ये 3 बातें, संस्कृत विषय के साथ भेदभाव, संस्कृत अध्यापक के साथ भेदभाव और प्रवेश के समय जो संस्कृत बैकग्राउंड वाले गुरुकुल और संस्कृत पाठशाला से जुड़े हुए छात्र हैं उनके साथ भेदभाव, और उनको हम दूर कर सके और अभी ठीक समय है उनको उचित स्थान दे सके। जैसा कि जब देश आजाद हो रहा था तो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और उस समय के कई मुस्लिम सांसद वो चाहते थे कि देश की राजभाषा संस्कृत बन जाए, और उस समय ये एक मत हो सकता था। मैं आज ऐसा ही अवसर देखता हूं, क्योंकि MSc बन चुकी है, MSR बनना है, तो यहाँ जो भी महानुभाव है मैं बहुत ही प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। मेरे अग्रज हरिद्वार के प्रोफेसर अग्निहोत्री जी भी यहाँ बैठे हुए, उनसे भी संवाद होता रहता है। तो ऐसे आप सब लोग कम से कम क्या कर सकते हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आप एक एक कम से कम एक अंतर्देशीय पत्र अपने हिसाब से इन बिंदुओं को लेकर के NCI असम के चेयरमैन को या उससे जो संबंधित लोग हैं उनको यदि भेज सकते हैं
यदि आप इस विषय से सहमत हो तो मैं समझता हूं मेरे लिए पवन जी ने जो समय निर्धारित किया था शायद पूरा हो गया हो। मेरी बात किसी को चुभी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और संस्कृत का कार्यकर्ता, उसी तरह से आयुर्वेद का भी एक कार्यकर्ता इस नाते से अपने जीवन के 35 वर्षों से काम कर रहा हूं। इसलिए मैंने बजाय किसी सैद्धांतिक और शास्त्रीय विषय पर चर्चा करने के, जो बिल्कुल ज्वलंत विषय है, जो मौलिक विषय है, जो नीतिगत विषय है, उस पर मैंने चर्चा करने का प्रयत्न किया। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। पवन जी आपको धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। अग्निहोत्री जी, सबको, जिन सब लोगों ने मुझे धैर्य। नमस्कार शास्त्री जी, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपने ऐसे ज्वलंत विषयों पर, मैं तो अपना ही उदाहरण ले सकता हूँ। पिताजी को चरक, सुश्रुत और बागवट, वो फर्स्ट बैच के HPA थे हरिशंकर शर्मा जी के साथ, तो उनको चरक, सुश्रुत और बागवट हम पढ़ते थे, तब वो आंख बंद करके बताते थे 20-25 साल बाद कि ये पेज नंबर इतना है और श्लोक इतना है। हम आए, हमने सिलेक्टेड श्लोक याद किए, 8 से 10 हजार श्लोक याद किए, उसके बाद में लिमिटेड श्लोक याद किए, पढ़ी पूरी लेकिन याद किए थोड़े से। तो जो कंठस्थ करने वाली परंपरा थी, जो निरुक्ति और व्युत्पत्ति की खोज करने वाली परंपरा थी, वो वास्तव में आयुर्वेद की खोज करने वाली परंपरा थी। और कहीं हम उससे दूर जाते जा रहे हैं। हमारी नई जनरेशन संस्कृत के विषय में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही। जब तक हमारे मैं पी नंदकुमार जी का आह्वान करता हूं। डॉक्टर उन्नीकृष्णन इज ज्वाइनिंग इन टाइम, few seconds, but till then I would like to invite Dr. P Nandakumar. He was here. Dr. P Nandakumar. Until then I would like to request our beloved Dr. Ramadas P V, Professor, Sanskrit, Amrita School of Ayurveda, KOLLAM. Welcome, Doctor. In the meantime, Namaste. 1 minute. Can you hear me? We can hear you clearly, sir. Yes. Yad Shastri Mahodayana Uktam Tat Sarvam Satyam. At your place, 2 volumes are open. 1 minute. From one you are operating and from other you are. Yes. Now it's okay. Because I am in a very remote village, so I am sitting in such a place. My mother was yesterday admitted in the hospital. Today at 4 o'clock only discharged. So that is the condition. So okay. How is she now? How is she now? Okay. She is okay. She is now okay. God bless. Yad Shastri Mahodayane Uktam Tat Sarvam Samskrita Bhashayah Tada Ayurvedasya Tada Samskrita Ayurveda Chatranam Cha Durgadihi Ityavam Vaktavyam Tattu Shuddham Karaniyam Eva Tatra Karma Asti Tatra. So I will speak in English because that will be more better for you, everybody, to understand the things more than Sanskrit. Now we'll come to the concept of our Sanskrit language, as it is a mother of language. Whom can you call a mother? That's the first question comes. See, if you take the story of Lord Krishna, he has 2 mothers. Whom he loved more, if you ask, whether it is Devaki or Yashoda. Devaki has given birth to Krishna. Yashoda looked after him. You just imagine, both of them were his dearest mothers. Sanskrit language is such a mother. From that, many languages came out into being. As well as Sanskrit language is the languages like Yashoda, a good grammar it made for the whole universe to make their language rich. So, Poshaka Rupena, Vishwa Bhashasu Samskrita Mata Eva Bhavati. Bharatiya Bhashasu Samskrita Bhashayaha Janmadhanad Madritvam Evam Dviprakarena Madha Bhavati Asmagam Samskrita Bhasha.
पुनः संस्कृतभाषायाः कालनिर्णयं तत्तु व्यर्थमेव। भाषायाः कालनिर्णयं यः करोति सः मूर्खः इति वक्तव्यम्। कुत इति चेत् यदा तत्र जीवितम् आरब्धं तत्रस्मात् भाषा अस्ति, भाषणं तु सर्वदा अस्ति एव। पुनः वेदाः सन्ति संस्कृतभाषायां, 4 वेदाः सन्ति, ते अपौरुषेयः इति वदन्ति, परन्तु जनानां मध्ये संस्कृतभाषा द्वारा एव वेदानां पठनं पाठनं च अभवत्। तदा संस्कृतभाषा सांख्यशास्त्रे प्रकृतिः इव माता रूपेण एव भवति इत्यत्र संशयो नास्ति। पुनः यदा पाणिनिमहोदयः आगतः तत्रस्मात् संस्कृतभाषायाः लौकिकसंस्कृतम् इति एकमपि प्रकारं जातं। सः अपि एकस्मिन् सूत्रे सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रे लोके वेदे च इति पाणिनिना एव उक्तं भवति। सो लोके वेदे इति वक्ष्यते चेत् लौकिकसंस्कृतभाषा अस्ति, वैदिकसंस्कृतभाषा अस्ति। एवं पाणिनिमहोदयेन एव भाषायाः कालक्रमेण यत् भिन्नानि रूपाणि जातानि वा संस्कृतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनं कथम् अभवत् इति उक्तवान्। कुत इति चेत् संस्कृतभाषा वेदभाषारूपेण चालितमासीत्, प्रचालितमासीत्, भाषणे अपि संस्कृतभाषा आसीत्, परन्तु जनानां कृते अत्र बहूनि भाषाणि, बहवः भाषाः सन्ति अत्र, तत्र भाषाणाम् एकीकरणम् आवश्यकम् अभवत्। तथा पाणिनिः अष्टाध्यायी द्वारा तत् कर्म कृतवान्। सः संस्कृतभाषायाः अक्षरान् माहेश्वरसूत्ररूपेण रचयित्वा तत्र किं कृतवान्, प्रत्याहारमिति सङ्गणकयन्त्रे कीदृशं कर्म चलति तस्य आरब्धं कृतवान्। अयूणुर्लक्केयोङ् अयोच् अयवरडलन ञमगणं नाम जभञ् घटदश झपघटदश झपघटतघटदो कपै शशधरहल इति 14 माहेश्वरसूत्रद्वारा प्रत्याहारणं निर्माणं कृतवान्। एवं संस्कृतभाषायाः शास्त्रीयतां कृतवान् पाणिनिमहोदयेन। तेन एव संस्कृतभाषायाः अक्षराणाम् उच्चारणस्थानानि, आभ्यन्तरप्रयत्नानि, बाह्यप्रयत्नानि इत्येतानि शास्त्रीयपठनं कृत्वा संस्कृतभाषायाः तथा यत्किञ्च लौकिकभाषाः तत्र सन्ति तेषाम् एकीकरणं कृत्वा साहित्यशास्त्राणां तथा शास्त्रशास्त्राणां शास्त्रग्रन्थानां च निर्माणाय एकीकरणं कृतवान् पाणिनिमहोदयः। एवं संस्कृतभाषायाः व्याकरणरूपेण यत् पुस्तकानि शास्त्रग्रन्थानि रचितानि सन्ति तेषां पठनं व्याकरणपठन अभावेन न पूर्णं भवति, तत् आवश्यकमेव। अत्र मदन महोदयेन उक्तं physiology. See the pronunciation, place of articulation and the internal and external, you just imagine it is purely physiology. Therefrom it starts. And once you enter into the Sanskrit grammar, you can see Prakriti Pratyaya Vibhajanam. That means Dhatu Pratyaya Vibhajanam. That which has happened in Sanskrit first in the whole universe if you take. What is the advantage of Prakriti Pratyaya? And he did not stop it by Subanta or Tinganta. He added Kridanta, he added Tadida Pratyaya, he added Sananda Pratyaya. So this all promoted the language, and the writer can do in such a wonderful new words from the existing dhatus by changing the pratyayas. With that he did not stop. He started adding upasargas into it, prefixes into it. Again he gave more freedom for the writer to create his own words from the existing roots. Still he did not stop. He added nipadas, he added abhyayas. This all added the meaning of the context in such a way. And if you do not know all these things, how can you understand a science? How can you understand a literary textbook? Impossible it is, highly impossible. This is the damage that which Shastri sir told, that without this background, if you study Ayurveda, it is impossible to understand it completely.
This is what is the very important thing has to be taken. And whatever be the division made for Sanskrit teachers and the professional teachers, this all years and years it is going on. And as he told, there are institutions where there is no Sanskrit teachers. They hire the Sanskrit teacher for 3 months or 4 months, and the students are just reading something, and the question papers are made in such a way, and examinations are conducted just fast. This all actually injustice to the Sanskrit in BMS. This has to be removed. I myself trying a lot with the pupil Sanskrit teachers. I request them, you just go change the things. You start reading the Ashtanga Hridaya, you make it Sanskrit familiar with Ashtanga Hridaya, and let the interest be come out. But all this limitation, what Shastri sir told, is there with the teachers. Why the apex body is not taking into care of such things? It's a big question. My experience in Ayurveda colleges almost 20 years. I'm watching it from there. But my institution, they are respecting Sanskrit teacher a lot. I'm getting full freedom for me to teach in a detailed manner. I'm running classes before college time, Ashtanga Hridaya Parayana and Sandhi Vicheda, Samasa, etc. I'm teaching in my college. Full freedom is given to me, but many colleges, it is not there. So this is all interest of the institutions. See, actually, it should not be interest of the institution. It should be the rule from the apex body. Then everybody does it. This has to be pointed out. Whatever Shastri sir told is 100% correct. I request all of you once again. But now the topic is mother. That is the thing. Okay. So like an Yashoda, like the given birth Mata, how Sri Krishna loved both, same way, all the worldly languages should respect Sanskrit as a mother in this both the ways. Now coming to some of the Nirukti and Nishpati, how it comes. You know, there are Sandhi, there are Samasa. Why all these things are being created? You see, you can find out almost all the Vedic hymns are in Chandas. There are Matravrita, there are Aksharavrita. They all need the letters, numbers, as well as the Matra in that one. For all that, you need grammar. So Panini is very wise. He created Sandhi, he created Samasa, and he found out how can you reduce the word when you want more word, how can you use it, and etc. He created. You see, that is first idea behind this Sandhi and Samasa. And you go to the Samasa, there itself, one single word, according to the Adhikarana, according to the context, you can change the Vigraha Vakya. Meaning will change. We imagine, again, you have an option for thinking additional from the same word that which is used in the context. And if it is scientifically justificable, it is your ability to find a new meaning to that context. Again, open. Through language, it is open. We need to study this. We need to study this. And another thing, when you go to Nirukti, whatever Madan sir told in the beginning, Nirukti is for the single words actually. If you take Vataha, Doshaha, Vati iti Vataha, Dhatu is Va Gati Gandhana Yoho. So what is the meaning of Gati? What is the meaning of Gandhana? If you know that, you know Vata. You don't have to learn that 6 properties of the Vata at all. Because if the dosha has to do the Gandhana, it should be Ruksha, it should be Sukshma, no doubt. Otherwise, the Gandhana will not happen because they have to make the pierce, they have to make the hole. So automatically it should be Ruksha. It should be Sukshma. You see the Nirukti of Sukshma, Suchyate is Sukshma. You see, Suchyate, like the pin enter. So there all it is very clear that Gandhana is the property that which is rich with Vada. And Chala is its normal nature, that which you can see in the whole world. We understand the wind is there by movement there. So automatically that is his property. So with Va Gati Gantanayoho, you understand Vata. Going to Kapha, you see, Kena Phalati iti. Kena iti vakshe Jalena iti artha. Kena Phalati, that which formed with the water. You just imagine, Parthiva is there. If the Apya is not added, Kapha is not there. In Kashaya, you have Parthiva Tanmatra, you have Prithvi Mahabhuta, but Apya is not there.
Ruksha Swabhavaga Vata is there. It is reducing Kapha. But if you come to Kapha, there is Apya is there, then Kapha is coming. So imagine in the word Kapha, the most importance is for the action of the water. So where the Kapha is the Paryaya used for the Kapha dosha, you must understand that there is some variation of the water particle in that. When you go for the Paryaya Shleshma, Shlisha Alingane is one of the dhatu it means. If Alingana has to be done, it is holding. You just imagine where Shleshma is used, certainly there will be something related to holding. It may be something related to Pichila Guna, that taste nature. See, if you learn that particular nirukti of Shleshma, and if you see where the Shleshma pada is used, you can find out the action will be that. Wherever the Kapha used, the action will be with the water. Even your clinical approach will change if you know that. This is what is the nirukti helps. And you come to prana vayu. If you take prana, when he divides the vata into 5, when he divides the pitta into 5, he uses atma shabda. Vata panchatma, same way pitta panchatma, but kapha he did not say atma. See, when you say atma, atma is atati iti atma, you know that. Sarvada sarva bhavena samantada agacchati iti atma. So atma is everywhere, nityagaha and sukshma. See, pitta dosha and vata dosha are sukshma, and everywhere they must be there. Understood? This is what it says about. And you come to kapha, you don't have to, because it is a mass. It is not atma, it is not sukshma, it is stula. You get that idea from that. And you see, when you speak about the prana vayu, it is prakarshena aniti or praniti jivati iti prana. There are two types of pratyas they used. Kartari ach as well as karane ghany. Two pratyas they are using. So from that you can understand prana vayu has got kartrutvam as well as karanatvam. It acts as karta who act as well as a karana as an instrument. When you take udana, there is only karana. See, when the kartrutvam is attributed, you should see pranavayu damages with kartrutva also. Swatantraha karta. Yatra kriyayam swadhantriyena vivakshito arthaha karta bhavati. Sadhagatamam karanam. Kriya siddho prakrishtopakaragam karanasapnyam syat. You see, there is only upagaraga. Here swadhantriyena vivakshitarthaha. You look at prana in that one, you can find out. Again, your view on studying the prana is different. View on studying the udana is different. When you study the udana dosha damage or the prana dosha damage, you can go all these approaches over. How it helps you. This much very, very deeper you can go. And apidiyate iti pittam. If you see the Shabda Kalpadruma, it gives two senses to it. Prakrita rekshyate, Vikrita nashyate. These are the two. And he uses, there are two dhatus to form pitta. They are da and de. There is a dadu, deing dadu, it is for palane. There is dai dadu, it is for chetane. So if it is normal, then the dadu used is deing palane. Because with the sharira ushma only, the body will be balanced. There is palana. If you go for biochemistry, if your bonds of carbohydrates should be maintained in that level, you need to have a temperature in that. So that is the palana property of the pitta. If it has to be splitted, it should change. You go to the pitta swabhava, pitta gunas, sasneha tikshnoshnam, lagu visram saran dravam. See, if the dravatva property is there, then the balance will be there. Agni is a condition, tekta dravatvam analasapnya.
There the Dravatvam is completely removed. Then automatically what he does, he breaks the bonds. So to break the bond, he should lose the Dravatvam. I hope you understood. So whenever the Dravatva in a proper quantity, in the Snigdha in a proper quantity, if the Pitta is not there, you will get the diseases like high Pitta, they do on the Basmaga, etc. It will swallow just like anything. And you come to Ahara Pachana, there only he is speaking about Tekta Dravatvam. When you speak about Dhatu Agni, he is not speak about Tekta Dravatvam. All the Pajaka Dravyas are not Dibana Dravyas. All the Dibana Dravyas are not Pajana Dravyas. You see, there the Dravatva Tyaga is very less in Dibana. Again, it gets the Pitta's normal quality, Dravatva must be there. But when it is in Jadra Agni, it should not be there. If a Dravatva is there, certainly there will be Ama. You see, the Dravatva is closely related to the Kapha Vriddhi. Kapha Vriddhi comes, Kapha automatically becomes Vriddhi. Vriddhi means liquidization, no doubt. Skannatvam is the property of Kapha. So automatically, there also, the Pitta and Kapha is somewhat related, and wherever the Kapha Vritti happens, there the Dravatva of the Pitta increases, then automatically there will be problem with the Agni and etc. Again, from that, Apidiyate iti Pittam. This is the Nirukti of that. So like this, if you go closer to the things, you can have more and more depth in meanings. Now, Sanskrit is such a language, only one word, kam or kaha. There are so many meanings for the kam. Kam, jalena, jalam is one of the meaning. Shira is another meaning. Shiras is ka. When you say it is in Pullinga, it has got again another lot of meaning in that one. It can be so many, Agnihi, Vayuhu, Brahma, like this, so many meanings for Eka Akshara, Kaha. Which language you have such a great sense of meaning. So in all these aspects, when you take, Sanskrit language is eligible to become the mother of the whole universe. One more thing, if you say the language is for communication, communication shows your culture, Samskriti. Bharadasya Samskriti, Samskrita Bhashayam eva. Bharadasya Samskriti eva Vishwa Samskritehe Matapi. Sarve Vishwe Sarve Janaha Bharata Samskritehe eva Aradhanam Kurvanti. Tata Samshayo Nasti. Tasmat Samskriti Rupena Pashyate Chedapi Samskrita Bhasha eva Mata. Atra Samshayo Nasti. This is what I wanted to communicate today, and whatever Shastri sir told, I 100% join with him. If you can do something for that one, that will be a great thing. And about Sanskrit, there are a lot to speak, but time is very less. So I request Sanskrit has to be lifted in Ayurveda colleges in this manner, And the Sanskrit teachers should work hard on it in this manner, and they should give beautiful explanation for every context. Because if you take Tantra Yukti, Adhikarana Tantra Yukti, Yoga Tantra Yukti, if you take Pada Purana, Vakya Purana Tantra Yukti, where all Sanskrit, if it is not there, you cannot explain it. You cannot. If you wanted to do research in Tantra Yukti and using that, you need it. If you take Vadamarga of Charaga, without Sanskrit language, you cannot do Vadamarga. No doubt. So everywhere, the Sanskrit is very much needed. So let this be a beginning or the starting point of our big journey of promoting Sanskrit in Ayurvedic learning as well as in all fields of life. Thank you. Thank you very much. Dhanyawad. Thank you, Dr. Ramadas. Thank you for your motivational, inspiring, excellent. After Shastriji, you continued well. You both were opening batsmen. And you played well. Excellent. Thank you, Dr. Ramadas. Now I would like to invite Dr. Unnikrishnan ji, who has joined recently, Vice Principal, Government Sanskrit College, Thiruvananthapuram,
Kerala. So welcome, sir. Welcome. We are eager to listen you. Welcome. You are mute, sir. Kindly unmute. Please unmute. Unmute, Unnikrishnan, sir. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Yontah Pravishya Mama Vachamimam Prasuptam Sanjeevayatya Akhila Shakti Dharaswadhamna Anyascha Hasta Charana Shravanatvagadin Pranan Namo Bhagavate Purushaya Tubhyam Samadriniyaha Jyeshtaha Shreshtaha Asyam Antarjaliga Sangoshthyam Bhagam Swikurvantaha Samskrita Pranayinaha Adya Vishwe Sarvatra Vishwa Matra Bhasha Dinam Savaibhavam Samacharyate Shikshanasya Mula Shila Rupena Madra Bhasha Avashyam Swikaraniya Madra Bhashaya Meva Sarvanyapi Adhyanani Sarvepi Patana Patana Karyakramaha Bhaveyuhu Iti Asmagam Rashtriya Shiksha Nitehe Moolabhuta Siddhanta Atra Madhrabhasha Ka Ityeva Prashnaha Madhrabhasha Namaka Aham Vadami Samskritameva Bharatasya Madhrabhasha Yadyapi Kerala Malayala Bhasha Bhavati Karnataka Kannada Bhasha Bhavati Andhra Pradesh Telugu Bhasha Bhavati Kashmiri Kashmiri Bhavati Assami Bhavati Bengali Bhavati Satyam Tat Sarvam Tattat Pradeshika Bhashaha Eva Kintu Tadrisha Bhashanam Sarvasam Api Madhrabhasha Ka Asti Matrabhasha Matrabhashana Bhavitumarha Rashtrabhasha Bharatiyana Bhavatu Bhasha Dveshanasha Sarvadha Udghoshayamaha Bharatiya Bharatiyesha Anupama Sarasa Chiranavina Samskrita Yesha Vrikshasya Shakti Ka Iti Prichati Tatra Shakti Dvayam Asti Vrikshasya Yata You are mute, sir. पवन जी लगता है आवाज कट गया. Unnikrishnan, sir, your sound is not coming. Sir, Shabdam Virindilla. Unnikrishnan, sir. Kshamyatam. Samskritam Tatra Eka Likhu Udaharanam Aham Arabdhavan Tanmadhye
काचित् समस्या जाता, क्षम्यताम्। वृक्षस्य का शक्तिः इति वयं चिन्तयामः। तत्र शक्तिद्वयम्। वृक्षस्य यद् मुख्यं काण्डं तस्य आन्तरिकसत्त्वम् एवमेव दार्ढ्यम्। मूलानि वृक्षस्य मूलानि भूमौ यावत् 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 अधिकं गच्छति तावत् वृक्षं दृढं भवति, न पतति। एवं संस्कृतभाषा कश्चन वृक्षः। एवं वयं चिन्तयामः चेत् तत्र शक्तिद्वयं भवति। काण्डस्य आन्तरिक सत्त्वदार्ढ्यं संस्कृतज्ञानं, तत् किं व्याकरणादिशास्त्रज्ञानं, तत्तु अधीत संस्कृतज्ञानं भवतु अथवा अधीयमान संस्कृतज्ञानं भवतु, व्याकरणज्ञानं भवतु। गभीरं गतानि मूलानि इव विद्यमाना काचित् शक्तिः मातृभाषारूपेण सा भाषा। एवं मातृभाषारूपेण भाषा भवति, शिक्षणमाध्यमरूपेण भाषा भवति, लोकव्यवहाररूपेण भाषा भवति। मूलेष्वपि एकं मूलं मुख्यभूतं भवति किल। एकस्य वृक्षस्य मूलानि बहूनि भवन्ति, किन्तु वयं पश्यामः चेत् एकं मूलं मुख्यं मूलं भवति किल। एवमेव वृक्षस्यापि मातृमूलमिति वयं वदामः, तत् मूलं वृक्षस्य वास्तविकः आधारः भवति। अत्र भाषाणां विषये इदानीं मदन महोदयः एवमेव रामदास महोदयः द्वयोरपि उपस्थापनमासीत्। किन्तु कस्याश्चिदपि भाषायाः मातृमूलतुल्यं मातृभाषात्वमेव। अतः अस्मिन् मातृभाषा दिने संस्कृत मातृभाषी परंपरा निर्मातव्या इत्येव मया चिन्तनीयः, मया उपस्थापनीयः विषयः। गृहे गृहे संस्कृतं, तदानीमेव सा परंपरा दृढ़ा भवति। मातृभाषा मातृभाषाणाम् इति अहम् एकं गानं कृतवान्। संस्कृतं मातृभाषाणां माता अस्ति, अत एव संस्कृतं मातृभाषा एव। इदानीं केवलम् अभिमानेन आम् अहं मम भाषा मम मातृभाषा संस्कृतम् इति अभिमानेन उक्त्वा प्रयोजनं नास्ति। तेन मातृभाषा न भवति। इदानीं लेटेस्ट् सेन्सस् अनुसारेण भारते 10,000,000 संस्कृत मातृभाषा भाषिणः सन्ति जनगणति अनुसारेण। किन्तु जनगणना अवसरे सेन्सस् समये मातृभाषा संस्कृतमिति वक्तुम् अभिमानं नास्ति बहुना। सा एव समस्या। विल् डूरण्ट् महाशयः पूर्वम् उक्तवान् आसीत्, India was the motherland of our race and Sanskrit the mother of Europe's languages.
Adeva, Mother India is in many ways the mother of us all. Idi will Duran Mahabhagaha Ukkatavanasi. Varshebhyah Purum. Tad Asmabhihi Smaraniyam. Evameva Samskritam Madhrabhasha Iti Vakudum. Abhimanena Vakudum. Jananam Shaktihi Apekshita. Mama Griham Samskrita Griham. Aham Abhimanena Vadami. Mama Patni Samskrite Sambhashanam Karoti. Mama Putri Ayurveda Chhatra. BAMS Antima Varsha Chhatra. Sa Samskrite Neva Vyavaharati. Tasyaha Anuja Asti Samannita. Sasyaha Madhrabhasha Samskritam. Mama Lekhuputraha Asti. Panchavayaskaha. Sahapi Samskrite Neva Vyavaharati. Tasya Etesham Sarvesham Madhrabhasha Samskritam Asti. Aham tu Malayala Bhashayam Chintayami Swapnam Pashyami Samskrite Sambhashanam Karum. Kintu Mama Putraha, Mama Putri Samskritam eva Pashyati, Samskrite eva Chintayati, Samskrite eva Kolahalam Karoti, Samskrite eva Yuddham Karoti, Samskrite eva Kridati, Samskrite eva Swapnam Pashyati, Samskrite eva Chintayati. Tadrishi Kachita Madhrabhasha Parampara Nirmatavya Tadanimeva Madhrabhasha Dina Acharanam Sarthagam Bhavati. Then Ayurveda Kalaleshu Samskritasya Ka Sthitihi iti Mama Mitra Varyena Ramadasena Ukkatam. Vastutaya Pathyakramasya doshaha nasti. Kim Padhaniyam iti Vishaye Charcha na Karaniya asti. Tat Charchitam Kritam. Kim Padhaniyam idina. Katham Padhaniyam. That is what is very important. Katham Padhaniyam. Tatra Samskrita Adhyapakanam eva dayitvam asti. Anantaram ye Ayurveda Adhyanam kurvanti tesham manasi Samskritasya upari abhimanam vardhaniyam. Abhimanam vardhaniyam. Idanim abhimanam nasti. Ayurvedam ye pathanti te sarvepi MBBS siva Ayurvedam pathitum ichanti. Tatha na. MBBS ityadi Angala Vaidyasya Apekshaya Shata Gunitam Pradhanamasti Ayurveda Adhyanam. Lokasya Bhavini Kalasya Chikilsa Ayurveda Chikilsa Asti. Bhavishyat Bharatasya Bhavishyat Vishwasya Chikitsa Sampradaya Ayurveda. Kintu Ayurveda Chikitsa Sampradayasya Sarvepi Siddhantaha Samskrita eva. Ataha Samskritam bina katham Ayurveda adhyanam. Achintyameva. Asambhavyameva. Kintu daurbhagyavashat. Aham Ayurveda adhyanam kartum ichhami. Kintu aham Samskritam na ichhami. Iti Chhatranam manasi bhava. Bhava parivartanam anetavyam. Chhatranam manasi Bhava Parivartanam anetavyam. Tadartham kaha upayaha. Tadartham sarvatrapi. Yatha idanim Ramadas Mahodayasya Amrita Ayurveda Kalale Sarveshamapi Chhatranam Sarala Samskrita Adhyanam Prajalati. Samskrita Sambhashna Vargaha Bhavati. Sapadahike Melanani Bhavanti. Tatha Bharate Sarvatra
സർവ ആയുർവേദ മഹാവിദ്യാലയേഷു സരള സംസ്കൃത അധ്യയനം. ഹസന് സംസ്കൃതം പഠാമി, രുദന് ഹസന് സംസ്കൃതം പഠാമി, ക്രീഡന് സംസ്കൃതം പഠാമി, ഗായന് സംസ്കൃതം പഠാമി. ഏവം ഗായന് ക്രീഡന് ഹസന് സംസ്കൃത അധ്യയനം തദർത്ഥം के उपायाः सन्ति वयं सगौरवं चिन्तयामः. एवं आयुर्वेद कलालये संस्कृत वातावरणस्य परिवर्तनमानयामः. तदानीं वस्तुतया आयुर्वेद शास्त्रं जीवति. इदानीम् आयुर्वेदः जीवति, किन्तु आयुर्वेद शास्त्रस्य का गतिः? आयुर्वेद शास्त्रस्य गभीर अध्ययनं के कुर्वन्ति? अंगुली परिमिताः. एवं अंगुली परिमिताः एव आयुर्वेद शास्त्रस्य गभीर अध्ययनं कुर्वन्ति. कारणं तेषां संस्कृत ज्ञानं नास्ति. अतः अस्मिन् मातृभाषा दिने, विश्व मातृभाषा दिने मम सविनय प्रार्थना अस्ति, ये आयुर्वेद क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति भवन्तः कृपया भारते सर्वत्र आयुर्वेद अध्ययनस्य आरम्भे एव 10-20 दिनानाम् अथवा एकमासस्य एक ब्रिड्ज् कोर्स् आरम्भं कुर्वन्तु. समानरूपेण भारते सर्वत्र एक ब्रिड्ज् कोर्स्, एक इन्सेंटिव् ट्रेनिंग कोर्स्, हसन् क्रीडन् संस्कृत अध्ययनं कर्तुम् एक प्रारंभ कोर्स्. सर्वत्र वयं संस्कृत सेवकाः, संस्कृत प्रचारकाः वयं निःशुल्कम् आगत्य पाठयामः. निःशुल्कम्, धनं न अपेक्षते. अत्र पङ्कजकस्तूरी आयुर्वेद कलालयः अस्ति तिरुवनन्तपुरे. तत्र 5 वर्षाणि 6 वर्षाणि वयं सर्वेषां संस्कृत अध्ययनं कारितवन्तः. ते इदानीमपि अभिमानेन वदन्ति, अहं किञ्चित् संस्कृतं जानामि, अहं किञ्चित् संस्कृतं वदामि. अतः अत्र ये समादरणीयाः संस्कृत पंडिताः एवमेव आयुर्वेद क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्तः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः भवन्तः साभिमानम् अग्रे गच्छन्तु. वयं पृष्ठतः साहाय्यं कर्तुं स्मः, निश्चयेन स्मः. वयं कटिबद्धाः. यत्र 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 आयुर्वेद कलालयाः सन्ति तत्र तत्र कति अध्यापकाः अपेक्षन्ते, कति शिक्षकाः अपेक्षन्ते वदन्तु, वयम् आगच्छामः. भारते यत्र कुत्रचित् आगच्छामः, संस्कृतं सरल संस्कृतं पाठयामः. संस्कृत अध्ययने उत्साहं जनयामः. कारणम् उत्साहेनैव कार्यं चलति, अग्रे चलति. नो चेत् ते धावन्ति संस्कृतं दृष्ट्वा, भीत्या धावन्ति. ते संस्कृतस्य व्याकरणसूत्रं श्रुत्वा धावन्ति, भयचकिताः भवन्ति. अतः प्रथममेव आरम्भे एव संस्कृत व्याकरणसूत्रं न पाठयामः. आरम्भे सरल सरल वाक्यानि, लघु लघु वाक्यानि श्रावयामः. अनन्तरं सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् एतत् ध्येयवाक्यं मनसि निधाय अग्रे गन्तुं पारयामः. तत्र नास्ति संशयलेशः. बहुत्र परीक्षणं कृतवन्तः, विजयं प्राप्तवन्तः. तत्र एकम् उदाहरणमस्ति, अमृता आयुर्वेद विद्यालयः, माता अमृतानन्दमयी देव्याः नाम्ना प्रचाल्यमान विद्यालयः. एवं बहुत्र
वयं कार्यं कृतवन्तः कर्तुमपि सिद्धाः एकं कार्यं निश्चितं भारते सर्वत्र आयुर्वेद महाविद्यालयेषु संस्कृतस्य वातावरणं परिवर्तनीयम् संस्कृतस्य संस्कृतोन्मुखं वातावरणम् आनेतव्यम् संस्कृतोन्मुखं वातावरणम् आनयामः तेन संस्कृतं न रक्षितं भवति आयुर्वेदः रक्षितः भवति आयुर्वेदशास्त्रं रक्षितं भवति संस्कृतं तु अस्ति एव वेदकालात् संस्कृतम् अस्ति तत्तु वेद लोकावसानपर्यन्तं स्थास्यति यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले इति रामायणं वदामः एवमेव संस्कृतं किन्तु आयुर्वेदशास्त्रम् अद्भुतकरं शास्त्रम् तस्य रक्षणम् अस्माकम् एकैकस्य भारतीयस्य दायित्वमस्ति यथा योगशास्त्रं रक्षणीयं तथा आयुर्वेदशास्त्रं रक्षणीयं तदर्थं संस्कृत वातावरणे किञ्चिदपि अनुकूलचिन्तनम् आवश्यकम् आयुर्वेद महाविद्यालयेषु अस्मिन् मातृभाषा विश्वमातृभाषा दिने एक संस्कृत गृह कुटुम्बस्थः इति एकस्य संस्कृत गृहस्य गृहनाथः इति अहमत्र उपविशामि अत्र उपवेष्टुं मम योग्यता एका एव अहम् एक संस्कृत मातृभाषा भाषी गृहस्थः अस्मि एका एव योग्यता अहं महाविद्यालयस्य प्राचार्य उपप्राचार्यः अस्मि तत् किमपि न संस्कृतस्य योग्यता एव मम योग्यता अत एव एतत् सौविध्यम् एकं लघु अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः कृतज्ञता कुसुमानि वितीर्य बद्धाञ्जलिः विरमत्ययं जनः वदतु संस्कृतं जयतु भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका एक्सीलेंट ग्रेट सर योर माँ सरस्वती has blessed you with motivational and inspiring voice and a flow. Excellent sir. Now I would like to welcome Dr. P. Nandakumar, Sanskrit Bharathi, Akhila Bharatiya Sampark Pramukh, Thrissur, from Thrissur, Kerala. We are grateful to Dr. Nandakumar. He has joined. Dr. P. Nandakumar, please. Welcome. Kindly unmute you. Yes, please. Yes. Namaste. सुन सकते हैं? Yes. नमस्ते. वसुधया अद्य मातृभाषा दिनम् एतत् आधारीकृत्य एषः एकः महान् कार्यक्रमः आयोजितः अस्ति। आरम्भे एव आयोजकानां धन्यवादम् अभिनन्दनं च वदामि। अत्र विषयद्वयम् एकं मातृभाषा तादृशी अस्ति सर्वेषामपि स्वकीय विचाराणां भावनानां कल्पनानां सर्वमपि प्रकटीकरणाय समर्थ एक माध्यमं सा मातृभाषा एव अस्ति। मातृभाषा द्वारा मुख्यतया कार्यद्वयं सिद्धं भवति इति तज्ञाः अपि वदन्ति। एकं मातृभाषा स्वस्य जन्मतः आरभ्य एव नैव जन्मतः पूर्वमपि जन्म से पहले से ही मातृभाषा संबंध भवति। एवं वदन्ति खलु मातुः गर्भावस्थायां माता कथं चिन्तयति किं पठति किं पश्यति किं शृणोति तद् सर्वमपि शिशोः विकासे शिशोः बुद्धिविकासे शिशोः भावनानां निर्माणे
सर्वम् उपकरोति इति। अभिमन्योः जीवनम् एकम् उदाहरणं पुराणेषु प्रसिद्धम्। अभिमन्यु कथम् एतत् सर्वं ज्ञानं प्राप्तवान् इति। न केवलं तद् बहूनामपि जीवनं तदेव दर्शयति। माता यदा गर्भवती आसीत् तस्मिन् समये किं पठितवती, किं चिन्तितवती, किम् उक्तवती, किं दृष्टवती, एतत् सर्वमपि शिशोः चिन्तने, विचारे, जीवने प्रकटितं भवति। अत्र मातृभाषायाः प्रभावः इतः आरभते। एवं क्रमेण सः शिशुः यद् अधिगतवान्, यद् तस्य अन्तः प्रविष्टं, तस्य आधारेण तस्य भावनाः अन्तरङ्गं विकसितं भवति। अग्रे अपि स्वतन्त्रतया, स्वाभाविकतया, सहजतया विषयाणाम् अवगमनं मातृभाषाद्वारा एव भवति। तथा मातृभाषायाः अध्ययनेन, उपयोगेन, पठनेन प्रत्येकं जनस्य वैकारिक भागस्य मस्तिष्कस्य विकासः स्वाभाविकतया भवति इति आधुनिक तज्ञानामपि मतं। कारणं ते सम्पूर्णतया तस्य मस्तिष्कस्य उपयोगं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। अन्य कापि भाषा भवतु तस्य मातृभाषायाः समीपं न आगच्छति इति मातृभाषायाः एक विशेषः अस्ति। स्वस्य तथैव द्वितीयभागः यः कोऽपि विचारः, या कापि भावना, इमेजिनेशन्, स्वकीयं या कल्पना अस्ति तद् सर्वमपि स्वाभाविकरूपेण प्रकटयितुं मातृभाषा एव समर्था। अन्यभाषाद्वारा स्वकीय विचाराणां, भावनानां, कल्पनानां यथा तथं as it is तथा प्रकटनम् अत्यन्तं कष्टकरमस्ति। अस्वाभाविकता तत्र भवति, कृतकता तत्र भवति, आर्टिफिशियालिटी तत्र भवति। सर्वभाषाभाषिणामपि एषः अनुभवः अस्ति एव। एतत् सर्वं विचिन्त्य एव अहं चिन्तयामि मातृभाषा दिवसस्य आचरणं समग्रे विश्वे भवति। कारणं भाषाः नैकाः भाषाः सन्ति, एका भाषा इति नास्ति। प्रत्येक जनविभागस्य प्रदेशस्यापि भाषा भिन्ना अस्ति, परन्तु तस्य प्रकटनेन, विकासेन, तस्य विकासाय प्रेरणा कारणेन अपि विविधाः भाषाः, भाषा वैविध्यं सर्वत्रापि तदेव किल। वैविध्यं सा एका अनुभूतिः अस्ति। वैविध्येन सौन्दर्यं वर्धते। सर्वत्रापि सङ्गीते भवतु, चित्रे भवतु, वर्णानि एकवर्णं न, अनेकवर्णाः, अनेकवर्णानामेव आस्वाद्यता अधिका। तथैव रागः, एकः रागः न, बहवः रागाः सन्ति, तदा सङ्गीतम् अत्यन्तम् आकर्षकं भवति। नाटकं भवतु, तत्र विविधानां रसानां संयोजनं भवति चेदेव तद् नाटकं केवलं शृङ्गारः भवति, केवलम् अद्भुतं भवति, केवलं शान्तिः भवति न, रोचते। भयानकं, बीभत्सं, तथैव रौद्रं, शान्तं, तथैव सर्वेपि भावाः मिश्रिताः भवेयुः, तथा एव अत्यन्तं वैशिष्ट्यं भवति। एवमेव केवलम् एका भाषा इति आनन्दकरी नास्ति। भाषा वैविध्यं सर्वदृष्ट्यापि अत्यन्तं प्रयोजनकरं भवति, अत्यन्तम् आकर्षकं भवति, अत्यन्तम् उत्कृष्टं भवति मानव विकासाय, मनुष्य हृदय विकासाय, तेन सह मानव बुद्धि विकासाय अपि अनेक भाषाणां विकासः, वर्धनम्, उपयोगः
अनिवार्यः अस्ति। एतत् सर्वमपि मनसि विचिन्त्य वयं सर्वे अपि मातृभाषा दिवसस्य समुचितम् आचरणं कुर्मः, मातृभाषाणाम् उपयोगं कुर्वन्तः, मातृभाषाणां प्रचारं कुर्वन्तः एतस्मिन् कर्मणि व्यापृताः भवामः। तदर्थम् आयोजितः एषः कार्यक्रमः अपि अत्यन्तं प्रशंसनीयः इति केवलम् उक्त्वा, तथैव अस्मिन् कार्यक्रमे ये भागभागिनः सन्ति, वक्तृरूपेण, श्रोतृरूपेण, आयोजकरूपेण एवं विविध प्रकारेण एतस्मिन् कार्यक्रमे ये भागिनः सन्ति, सर्वानपि सस्नेहं सादरं प्रणम्य अभिनन्द्य अहं विरमामि मम अल्पवचनेभ्यः। सर्वेषां मातृभाषा दिवसस्य शुभकामनाः। नमस्ते, पुनर्मिलामः। धन्यवादः। बहुत बहुत आभार सर आपका। काश हम भी आपकी तरह, सभी विद्वानों की तरह संस्कृत बोल पाते। रियली आप आज आपको सुन के बड़ा ओजस्वी लगा और मतलब एक रोमहर्ष जैसी स्टेज क्रिएट हुई बहुत दिनों बाद। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, सभी विद्वानों की जय हो। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा जी, एक्स चीफ मेडिकल ऑफिसर, NFSG आयुष, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली। Then I will invite Professor Madan sir, because he is quite from long time and that is not well for me also. Great sir. Welcome sir, welcome. Santosh sir, welcome. नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? जी क्लियर। हाँ जी हाँ जी, नमस्कार जी। यत् प्रभा पटलोद्भासी भासतेऽद्यापि भारतम् आयुर्वेदात्मकं ज्योति शाश्वतं नः प्रकाशताम्। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर मेरी शिक्षण संस्था रही। पहली बार जब महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो महाविद्यालय के सामने की दीवार पर जो प्रवेश की जो सामने की भित्ति थी, उस पर यह श्लोक पढ़ने का शुरू में ही सौभाग्य मिला। संस्कृत भाषा आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद के अध्ययन के लिए कितनी आवश्यक है, ये तो सब जब ग्रंथों को पढ़ने लगे तब पता लगा। लेकिन एक मजे की बात मैं प्रारंभ में ही बताना चाहूंगा कि 72 यानी कि 72 में 1972 में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के रूप में जयपुर में ये संस्था थी, जो बाद में 1976 में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में रूपांतरित हुई, भारत सरकार का प्रतिष्ठान बनी। तो मैं साक्षी रहा राज्य स्तर के आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश लेकर राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के, जो आज यूनिवर्सिटी बन चुकी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, उसके रूप में रूपांतरित होने वाले संस्थान का मैं साक्षी रहा। तो मैं जब प्रवेश मेरा हुआ, ये संस्कृत की महत्ता और संस्कृत के प्रयोग में होते हुए समयानुसार ह्रास के बारे में मैं चित्रण जो करना चाह रहा हूँ, मेरे अपने प्रत्यक्ष अनुभव से मैं वो आप लोगों से उसकी भागधेयता आपसे जो है वो अपेक्षित है कि मेरा जो प्रवेश हुआ, आज देखिए आप के बैकग्राउंड जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो एक आवश्यक चीजें कर दी गई हैं। मेडिकल साइंस के रूप में वो चीजें आवश्यक हैं, किंतु जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, संहिता हैं, निघंटु हैं, जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उन सब की रचना चूंकि संस्कृत में हुई है, तो उनको समझने के लिए उनका वास्तविक जो भाव, जो वास्तविक जो उनकी आत्मा है, जो वास्तविक भावना है ऋषियों की, रचनाकारों की, जो आयुर्वेद के ग्रंथों को जिन्होंने लिखा है, दरअसल वो सब संस्कृत भाषा से ही, संस्कृत भाषा के ज्ञान से ही स्पष्ट हो पाता है। और इसके लिए मैं जो बात कर रहा था
कि मेरा जब प्रवेश आयुर्वेद कॉलेज में हुआ 1972 में आयुर्वेदाचार्य में, तो मुझसे मेरे चयन के लिए जो इंटरव्यू लिया गया, मेरे गुरुवर्य प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो बाद में निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी सेवानिवृत्त हुए, रसशास्त्र के विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू जो लिया, तो उन्होंने छूटते ही, क्योंकि आयुर्वेद का मूल संस्कृत भाषा है, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लेकर के सिर्फ यही पूछा राजस्थानी भाषा में कि बेटा कोई श्लोक आवे कहीं। आप लोग राजस्थानी भाषा कितने लोग समझते होंगे? मैं समझता हूँ शायद अधिकांश समझते होंगे। राज्य की भाषा हिंदी से काफी मेल खाती हुई भाषा है। तो मेरे इंटरव्यू लेते हुए मेरे गुरुवर्य प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण जी शर्मा ने पूछा, बेटा कोई श्लोक आवे कहीं। यानी आप गंभीरता देखिए उस समय की। आयुर्वेद में, आयुर्वेद के पठन पाठन के लिए आने वाले छात्र को जो सबसे पहली खुराक दी गई, सबसे पहला जो संकेत किया गया, वो यही कि संस्कृत अति आवश्यक है समझने के लिए आयुर्वेद को। मैंने, चूंकि मेरा पृष्ठभूमि मेरी जो है संस्कृत रही, मैंने उपाध्याय, प्रवेशिका इत्यादि जो है संस्कृत के जो है अध्ययन करके ही मैं आया था। तो मैंने छूटते ही भर्तृहरि का नीति शतक जो है भर्तृहरि का वो सुनाया। मैं आप लोगों को भी वो बताऊंगा कि संस्कृत का कितना मधुर और कितना प्रभावी करने वाली चीज होती है। यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मे मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगता। भर्तृहरि के लिखे 3 शतकों में से नीति शतक का ये श्लोक, ये मैंने वहां अपनी भावना प्रकट की। तो फिर उन्होंने मुझसे अर्थ पूछा। वो मैं, ये वैसे तो यहाँ सारे संस्कृत के विद्वान हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि अर्थ करना कोई अपेक्षित होगा, लेकिन इस पर मेरा सिलेक्शन, मेरा चयन आयुर्वेदाचार्य में, आयुर्वेद के कोर्स में वैद्यत्व की तरफ प्रथम चरण जो है वो संस्कृत के इस श्लोक को सुनाने से ही मेरा चयन हुआ था। अब यहाँ क्या है दरअसल कि आगे जब आयुर्वेद पढ़ने की बात आई, तो सारे संहिता ग्रंथ, सारे निघंटु ग्रंथ, अब उसमें क्या है कि आयुर्वेद में 3 जो संहिताएं हैं मुख्य, उनको बृहत्त्रयी और लघुत्रयी जो है, ये छोटे जो उनके बाद जो सेकंड नंबर पर आते हैं उनको हम लघुत्रयी कहते हैं आयुर्वेद में। तो बृहत्त्रयी, लघुत्रयी ये पढ़े बिना, बृहत्त्रयी में चरक, सुश्रुत और वाग्भट की संहिताएं हैं, और ये इसमें निघंटु शार्ंगधर संहिता इत्यादि। उसके बिना आयुर्वेद का मूल ज्ञान नहीं हो सकता। एक संस्कृत की जहां बात आती है कि संस्कृत कितनी आवश्यक है और कितना स्पष्ट हो जाता है, देखिए, निघंटुना विना वैद्यो, हमारे जो निघंटु ग्रंथ हैं, निघंटुना विना वैद्यो विद्वान व्याकरणम विना अनभ्यासेन धानुष्कः त्रयो हास्यस्य भाजनम। निघंटु के बिना वैद्य, विद्वान कोई भी जो होगा वो बिना व्याकरण के, और अनभ्यास से, बिना अभ्यास के धानुष्क, धनुर्धर, तीनों ही हास्य के भाजन होते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है संस्कृत व्याकरण, तभी हम जो है और आयुर्वेद की मूल भावना को, उसकी आत्मा को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। कोई भी विद्यार्थी जो संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ और साइंस के बैकग्राउंड से आता है, दरअसल उसको मेडिकल साइंस को समझने में तो ठीक है आसानी होगी, पर आयुर्वेद के ग्रंथ जो संस्कृत में ही हैं मूलतः, उनको समझने में थोड़ी उसको कठिनाई वाली बात आएगी। अब जैसे हम अगर दूसरी भाषा की बात करें, मान लीजिए कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम इंग्लिश को एक
ग्लोबल लैंग्वेज मानते हैं कि भाई इंग्लिश में और जर्मन में और दूसरी भाषाओं में आयुर्वेद की संहिताओं का, ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। विस्तार से सारा वो अपने तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन इसमें जो मूल सूत्र रूप में आचार्यों ने कहा है, आचार्यों ने सूत्र रूप में अपनी बात कही। आचार्य अग्निवेश ने, चरक ने बाद में उसका जो है और प्रतिसंस्कार किया, तो चरक संहिता नाम हुआ अग्निवेश तंत्र का। तो हमारे काय चिकित्सा का मुख्य ग्रंथ है चरक संहिता। इसी तरह शल्य का सुश्रुत संहिता है ना, और वाग्भट संहिता, तीनों संहिताओं की जो बात है, तो आचार्य कहते हैं कि हम तो सूत्र रूप में कह रहे हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या, इसका विस्तृत मर्म, संस्कृत शब्दों के प्रयोग देखिए आप, मर्म, वो गंभीरता से उसका अर्थ जो समझने की बात है, वो फिर व्याख्याकारों ने किया है। जैसे हमारे मूल जो चरक संहिता है, उसकी व्याख्याएं तो कई हुई हैं संस्कृत हिंदी में, किंतु दीपिका व्याख्या जो है आचार्य चक्रपाणी की, वो सर्वप्रसिद्ध है। तो उन्होंने जितना स्पष्टतम रूप में वो मूल भावना को, उन सूत्रों को जितना स्पष्ट किया है, वो आनंद आता है कि आयुर्वेद को सही ढंग से समझने की बात जो आती है। जैसे संस्कृत अगर आपका उसमें थोड़ा भी टच है, आयुर्वेद की जितनी भी चीजें हैं, जैसे देखिए स्वस्थ जो व्यक्ति है, स्वास्थ्य की हमारे यहाँ परिभाषा क्या है? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीय। आयुर्वेद की जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है, वो तो अब तो WHO ने भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसी परिभाषा को अपने तरीके से लिया है। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, तो वहां हम दोष धातु और मल, इनको ही मूल मान रहे हैं शरीर का। तो समदोष, समधातु, सम अग्नि, मल क्रिया इत्यादि सब जो है, सारी क्रियाएं सब समान हो, ये तो शारीरिक रूप में हुआ। और उसके साथ में आत्मा और इंद्रिय और मन, ये सब प्रसन्न हो। ये सब चीजें मिला करके, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारी चीजें मिला करके जब ये सारे समता रूप में, समान रूप में, मतलब नॉर्मल हो, प्राकृत हो, तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। अब यहां क्या है कि जैसे जो संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, आयुर्वेद के लिए संस्कृत क्यों आवश्यक है भाषा? हमारा रोग को जो निदान करने का, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं हम पाश्चात्य प्रणाली में, डायग्नोसिस कार्य है, रोग निदान के लिए माधव निदान सबसे उपयुक्त, सबसे बढ़िया ग्रंथ माना जाता है। उसमें जो निदान पंचक का जो वर्णन, अब जो निदान पंचक है, निदानम पूर्व रूपाणी रूपाण्युपसयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम पंचधा स्मृता। तो ये जो चीज है, इसमें क्या है कि जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं होगा, वो निदान का मतलब सिर्फ जो अंग्रेजी भाषा में डायग्नोसिस कहा जाता है, निदान का मतलब सिर्फ वो समझेगा, वो उसको संशय में डालेगा। लेकिन जो संस्कृत का विद्यार्थी है, वो इसको स्पष्ट रूप से निदान के दो अर्थ निकालेगा। एक तो निदान का मतलब जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं, वो निदान पंचक इसलिए कहा गया है कि ये 5 चीजें मिला करके, इन सबकी स्थितियां देख करके, उसके बाद हम निदान करते हैं, यानी डायग्नोसिस करते हैं। अब यहाँ निदानम पूर्व रूपाणी रूपाण्युपसयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम पंचधा स्मृता, ये जो कहा गया है, तो प्रथम जो निदान शब्द है, संस्कृत का विद्यार्थी तुरंत पकड़ लेगा। यहां निदान का मतलब है कारण, हेतु। देखिए, जबकि निदान का सम्यक रूप से इन 5 को मिला करके डायग्नोसिस, वो निदान है। तो निदान शब्द के यहां 2 अर्थ है, संस्कृत का विद्यार्थी तुरंत समझ जाएगा। और इसीलिए निदान को, यानी हेतु को छोड़ना, निदान को त्याग करना चिकित्सा का एक मूल मंत्र बताया जाता है। वो निदान को छोड़ना, अगर हम वैसे बात करेंगे, कोई विद्यार्थी संस्कृत पढ़ा हुआ नहीं होगा तो कहेगा कि यार डायग्नोसिस को छोड़ देंगे अगर आप, तो फिर चिकित्सा कैसे करेंगे? वहां निदान है हेतु। तो हेतु का त्याग करना, संक्षेपतः क्रिया योगो
निदान परिवर्जनम, वहां निदान परिवर्जनम यानी कारण का जो पॉजिटिव फैक्टर है, जो हेतु है, उसका त्याग करना, वो चिकित्सा। तो वो वहां वो शब्द की बात आ गई। देखिए, तो इसलिए संस्कृत आवश्यक है आयुर्वेद को समझने के लिए। एक और मैं इसमें उदाहरण दूंगा। एक हमारे यहाँ रोग के कारणों में एक मुख्य कारण हमारे यहाँ एक शब्द आता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध, इग्नोरेंट नॉलेज आपका जो इंग्लिश वाला है, जानते बूझते किया जाने वाला गलत काम, कि हम जानते हैं कि ये चीज हमको नुकसान पहुंचाएगी, उसके बाद भी हम वो काम करते हैं। वो हमारे आहार विहार इत्यादि में हम जानते हैं कि इस प्रकार का आहार, इस प्रकार का हमारा विहार, इस प्रकार की हमारी ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, इस ऋतु में हमें ये नहीं खाना चाहिए, ये सब जो चीजें हैं, ये सारे मुझे हानि पहुंचाएंगे, व्याधिग्रस्त करेंगे, फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, तो प्रज्ञा अपराध है। अब प्रज्ञा अपराध केवल शब्द से तो इतना ही समझ में आएगा कि बुद्धि में जानते बूझते अपराध करना, लेकिन प्रज्ञा अपराध की जो परिभाषा आयुर्वेद में दी गई है वो है धी धृति स्मृति विभ्रंश, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। धी धृति स्मृति, देखिए आप, प्रज्ञा का मतलब ये तीन अलग अलग अवस्थाएं, परत दर परत खोल करके कितना सूक्ष्म विवेचन है, ये संस्कृत का विद्यार्थी ही समझ सकता है। संस्कृत कितनी आवश्यक है आयुर्वेद की इतनी गंभीर बात को समझने के लिए आचार्यों की। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट, धी धृति और स्मृति से विभ्रष्ट होकर, इन तीन बुद्धि के जो तीन अलग अलग, उनसे विभ्रष्ट होकर कर्म यत् कुरुते अशुभम, जो अशुभ कर्म किया जाता है, प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपण, उसको प्रज्ञापराध कहते हैं, जो सर्वदोष प्रकोपण होता है। दोष प्रकोप होगा मतलब रोग उत्पन्न होगा, रोगी होंगे। तो ये संस्कृत पढ़ने से ही आप इतना गंभीर तरीके से उसको समझ सकते हैं। इसी तरह से देखिए, संस्कृत का एक और जो समझने की बात है कि आयुर्वेद में पथ्य को बहुत महत्व दिया गया है, पथ्य को बहुत महत्व दिया गया है, और इस पर केवल एक हल्का सा चेंज कर देने से संस्कृत में एक अवग्रह चिन्ह आता है जो अंग्रेजी के एस की तरह बनता है, ए के लिए आता है। वो नियम संस्कृत का जो है उसमें क्या है कि अगर पूर्व में ए और ओ हो और आगे जो है वो ए है, तो वो संधि, वो जो मतलब आगे अगर ए है तो वो ए क्या करता है कि वो ए की जगह वो एस की तरह, अवग्रह कहते हैं उसको संस्कृत में। पथ्य, अब यहां पथ्य हमें लेना चाहिए तो हम बीमार नहीं होंगे, और अगर अपथ्य करेंगे, पथ्य का बहुत ज्यादा महत्व है आयुर्वेद में, अगर अपथ्य करेंगे तो फिर बीमार होंगे, औषधि हमें ठीक भी नहीं करेगी अगर अपथ्य करेंगे, कुपथ्य करेंगे। तो इसके लिए संस्कृत में कितना अच्छा श्लोक समझाया हुआ है हमारे, पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषध निषेवणैः, पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषध निषेवणैः, पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषध निषेवणैः। मदन जी बार बार मतलब घड़ी तो नहीं देख रहे हैं कि मेरा समय ज्यादा, मैं थोड़ा सा बचा हुआ समय ले रहा हूँ, तो कम। डॉक्टर साहब यहाँ तूफान चल रहा थोड़ा सा, 5-6 दिनों से बहुत गंभीर तूफान। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये 8 बजा रही है घड़ी, तो कहीं मेरा समय जो है मुझे शायद ये कम करना चाहिए? नहीं जी, आपने जो बताया बात, अब निदान के बारे में एक शब्द के बारे में थोड़ा बताना जी, ये है व्याधिक क्षमत्व, इसके बारे में थोड़ा करना। वही चीज है ना, ये व्याधिक क्षमत्व जो है वो ये है कि आपके शरीर में वो क्षमता पैदा होती है जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं आज की तारीख, आज के उसमें वो व्याधिक क्षमत्व है। वो क्षमत्व मतलब आप में, वो आपके शरीर में वो क्षमता आ गई है कि आप व्याधि का सामना कर रहे हैं। आपकी प्राकृतिक भी होती है और एक्वायर्ड भी होती है, जो आपकी इम्यूनिटी है वो। जैसे अभी कोरोना काल में ये सारा सब बार बार काफी चर्चाएं हुई ना ये, तो वो जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी अंग्रेजी में तो वो एक ही शब्द है उसके लिए। हाँ, तो वो हमारे, अब वो चीज क्या है वास्तव में कि आपके आहार विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या हमारे स्वस्थ व्रत पर, अभी 2 दिन पहले
वैद्य कमलेश जी के वाले शायद उसमें मैंने सुना था, उसमें शायद था ये स्वस्थ वृत्त पर ही था। वो स्वस्थ वृत्त के प्रोफेसर हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे अनुज हैं, तो वो इसके अधिकारी विद्वान हैं। लेकिन मैं केवल उसी बात पर, आपके इसी पर, कि व्याधि क्षमत्व के लिए हमें आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त का पालन, सदवृत्त का पालन, उस दिन सदवृत्त पर चर्चा थी वास्तव में। तो सदवृत्त तो वास्तव में क्या है कि वो तो इथिकल बिहेवियर के लिए है, वो सदवृत्त, अच्छा व्यवहार, उचित व्यवहार। लेकिन स्वस्थ वृत्त का मतलब है स्वस्थ रहने के लिए जो व्यवहार हम करें। तो उसमें क्या है कि दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, हमें वो सारी चीजें, इसी तरह आहार है। तो आहार विहार इत्यादि हमारी सारी चीजों पर क्या करें क्या न करें जिससे हम स्वस्थ रहें, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन ही वही है ना, प्रयोजनम चास्य। देखिए संस्कृत का, आयुर्वेद का जो है ना, हर जगह प्रयोजनम च अश्य, अश्य मतलब आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद शास्त्र प्रयोजनम, कि आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिकता वहां भी वही दी गई है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जिसको आप कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बाद में अंग्रेजी में जो चला है ना एडेज, तो वास्तव में वो हमारे शास्त्रीय उससे संदर्भ है। वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम प्रथम स्थान है, कि पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य की संरक्षण करें। दूसरा स्थान दिया है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुरस्य मतलब रोगे, रोगिण, तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, उसकी व्याधि को नाश करना। वो बाद का सेकंड चीज दी हमारे यहाँ। हम रोग होने की इंतजार या रोग होने की तरफ हमारा दृष्टिकोण वो नहीं है। हमारा यह है कि हम स्वास्थ्य के संरक्षण को पहले ध्यान दें। तो स्वास्थ्य संरक्षण के लिए हम जो ये सारे आहार इत्यादि, देखिए त्रय उपस्तंभा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इति आयुर्वेद का ये कथन है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन उपस्तंभ माने गए हैं आयुर्वेद। तो जब आहार जो है वो हीन, मिथ्या और अतियोग नहीं, आज संस्कृत से विषयांतर हो जा रहा है सर, कुछ संस्कृत विषयांतर हुआ क्या सर? अच्छा, विषयांतर ही हो गया, पूरा ही विषयांतर हो गया। तो हीन मिथ्यातियोग बाद में डिस्कस है। अपन लोग संस्कृत में कितना सुंदर फ्लो चल रहा था आप लोगों का। जय हो सर, सच्ची में आपकी विद्वता की जय हो। संस्कृत में आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। संस्कृत में ये बीच में जो मदन जी ने जो चीज पूछी ना, उसमें मैं थोड़ा सा उसमें चला गया, वो विषयांतर हो गया इत्यादि में, और उसमें चला गया उस चीज पर, व्याधि क्षमत्व के मूल में चला गया दरअसल में, कि भाई वो व्याधि क्षमत्व की मूल गंभीरता क्या है। बात जो पथ्य की चल रही थी, वहां संस्कृत के महत्व की बात जो चल रही थी ना पवन जी, तो उसमें क्या था कि मैं उसी की बात कर रहा था कि संस्कृत का कितना जबरदस्त जो है चमत्कार है। देखिए, एक अवग्रह की वजह से दो लाइन में एक सी लाइन है, पथ्ये सति गदार्थस्य, और दूसरे में उच्चारण में पथ्ये सति गदार्थस्य, लेकिन वहां क्या है कि वो अवग्रह है बीच में लिखित में, कि पथ्ये असति गदार्थस्य किमौषध निषेवणई। अब दोनों में अपने आप ही अर्थ जो है स्पष्ट हो गया। देखिए आप, भाव स्पष्ट हो गया है। तो संस्कृत का वो है ये कि अगर पथ्ये सति यानी पथ्य से हम रहेंगे, तो गदार्थस्य यानी रोग से जो आतुर है, व्याधि से जो आतुर है, किम औषध निषेवणई, उसका औषध सेवन से कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या फायदा, क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है, पथ्ये सति, अगर पथ्य से रहता है तो। और दूसरी जो लाइन है वो है पथ्ये असति, केवल वो अवग्रह का प्रयोग वैसे करके उसकी राग में वो पथ्ये सति बोलेंगे उसको, पर वास्तव में वो पथ्ये असति है, कि अगर पथ्य से न रहें तो किमौषध निषेवणई, फिर औषध का क्या उपयोग, फिर औषध क्या फायदा करेगी अगर पथ्य से नहीं रहेंगे तो दोनों ही। तो ये है संस्कृत जो है, इस रूप में हमें एक आवश्यक चीज होती है। अगर संस्कृत को आप दूसरी भाषा में अनुदित करके, मान लीजिए जर्मन में, इंग्लिश में, किसी में भी आप उस तरह करके आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है, लेकिन जो उसका मूल रहता है, जैसे देखिए एक एग्जांपल, मेरे मित्र जो है कमलेश जी ने, वैद्य कमलेश जी, प्रोफेसर वैद्य कमलेश जी ने एक बढ़िया उदाहरण दिया मेरे को, जब मैंने उनसे ये बात की कि यार ये जो दूसरी भाषाओं में इस तरह अनुदित होकर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो जो मूल चीज है ना, वो तो फिर चिपकी हुई रह जाएगी, वो पूर्णतः नहीं मिलेगी। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल देके समझाया मुझे
कि एक बोतल में से आप शहद को निकाल करके और दूसरे किसी पात्र में डाल रहे हैं, उंडेल रहे हैं। अब वो शहद उसमें थोड़ा सा आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, पर पूर्णतः नहीं आ रहा है, वो वही श्लिष्ट हो रहा है, वो वहीं चिपका रह रहा है उसी बोतल में। तो मतलब क्या कि वो पूर्णतः उसकी समग्र रूप से आत्मा के रूप में उसका वो जो है ज्ञान वहां नहीं हो रहा है। मान लीजिए दूसरी भाषा में हम हमारे आयुर्वेद की अग्नि को फायर कहेंगे इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे अग्नि को फायर कहेंगे, पर आयुर्वेद में अग्नि जो है वो बहुत ही विस्तृत रूप में समझाई गई है। 13 अग्नियां हैं, जाठराग्नि, पंचमहाभूताग्नि और सप्त धात्वाग्नि। अब रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदसोस्थि ततः मज्जा मज्जसा शुक्रम जायते, है ना। तो ये क्या है कि ये जो धातु का जो एक के बाद एक धातु जो है, रस से रक्त बना, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः, तो ये जो चीजें हैं ये धातु अग्नि का काम है। तो अग्नि का पाक जो है वहां एक धातु से दूसरी धातु में वो जो रूपांतरण होता है वो उस अग्नि से होता है। इसी तरह पंच महाभूत अग्नि है। जी सर, जी तो, सर, जी सर, है ना। सर, तो हम सर समय का थोड़ा अभी समय पूरा 2 घंटे हो चुका है और 3 वक्ता बाकी है। तो अभी आप 8 बजे बाद ही चलाएंगे तो फिर तो मुझे स्थान जो है संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम, नहीं मैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका आशीर्वाद हमेशा लेते रहेंगे। तो वो निदान पंचक, तो वो निदान पंचक की जो बात थी वो आयुर्वेद में संप्राप्ति तक पहुंच करके वो 5 जो निदान के जो हैं वो संप्राप्ति को समझना तभी होगा जब हम संस्कृत को समझेंगे। अब खैर संप्राप्ति विघटन इत्यादि की बात अगर मैं करूंगा तो समय की बात आप जो कर रहे हैं, तो फिर किम बहुना सुवेज्ञेषु। नमस्कार, प्रणाम। जय हो सर, जय हो। आपने आयुर्वेद और संस्कृत को दोनों को ऐसा सुंदर मिलाया। प्रणाम सर। वो जो सच्ची में बहुत अच्छा। हम आपसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, लेकिन सर आपकी ओजस्वी वाणी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बस वो समय केवल 15-20 मिनट ही रहता है, जब 6 स्पीकर होते हैं तो 15-20 मिनट भी बहुत, वो इसीलिए थोड़ी सी सॉरी कि मैंने आपको याद दिलाया, क्षमा चाहूंगा। दरअसल सारे लोग विशेषज्ञ हैं यहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अज्ञ है सुखम आराध्य सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्ध ब्रह्मापितम नरम न रंजयति। तो विशेषज्ञ हैं सारे, तो कुछ आवश्यकता ज्यादा है नहीं। किम बहुना सुविज्ञेषु। आप सबका आभार मदन जी, पवन जी, आप सभी लोगों का आभार कि आपने अवसर दिया। आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर जयदेव गमोट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संहिता एंड संस्कृत, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कॉलेज, राजकोट। आई होप मोनिका जी के नाम से आप जुड़े हुए हैं ना सर? नहीं, ये मेरा नहीं है सर। प्लीज स्टॉप शेयरिंग मोनिका जी, मोनिका वर्मा जी, काइंडली स्टॉप शेयरिंग। नमस्कार। गलती से हो गया, इसको स्टॉप शेयर वाला कर। हाँ जी, नमस्कार सर। आज पवन जी आपने मुझे ये बड़ा अवसर दिया है और मेरे लाइफ में ये पहला बड़ा सेमिनार वेबिनार, उसमें मैं ये प्रवक्ता के स्वरूप में हूँ, और वो भी आप जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ। ये मेरा सौभाग्य है। अद्य अहम विश्वस्य हितं संस्कृते निहितम् इति विषयोपरि किंचित वक्तुम् इच्छामि। मानवस्य कः धर्मः कः कर्मः। जीवने अनेकाः कर्मः श्रेष्ठः, किंतु विश्वस्य हितं संस्कृते निहितं समग्रस्य विश्वस्य यैः सिद्धान्तैः कल्याणैः सिद्धान्तः अस्माकं ऋषिभिः मुनिभिः शास्त्रेषु निगूहितः वर्तते।
वेदानां रचना तु अपौरुषेया वर्तते। पुराणानां रचना वेदव्यासेन कृता वर्तते। स्मृतिग्रन्थानां विविधैः ऋषिभिः मुनिभिः कृता वर्तते। एतस्मिन् विषये कश्चित् एकः प्रशस्तः मार्गः नास्ति, येन ऋषिणा, येन मुनिना, येन कविना, येन महापुरुषेण यदा यदा यद् यद् कथितं तद् मानवहिताय एव कथितं। कारणं ऋषेण जीवनम् एव परोपकारमयम् आसीत् इति कृत्वा ते सर्वे अपि ऋषयः वने स्थित्वा अपि मानव जीवनस्य चिन्तां कृतवन्तः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयं श्लोकः गरुड़ पुराणस्य अन्तिम श्लोकः अस्ति। भगवान् वेदव्यासः कथयति तद्वत् भगवान् आदिशंकराचार्यः, श्री वल्लभाचार्यः, निम्बकाचार्यः, मध्वाचार्यः, चैतन्य महाप्रभुः एते सर्वे अपि संतचरणाः अपि समाज कल्याणाय एव संपूर्ण स्वकीयं जीवनं दत्तवन्तः। समये समये मार्गदर्शनं कृतवन्तः। वने भवन्ति चेत् भवने स्थितानां चिन्तां कुर्वन्ति, एवं च यदा भवनं प्रविशन्ति ते यदा भवनं प्रविशन्ति चेत् तस्य हिताय एव सर्वं दत्त्वा गच्छन्ति। विश्वामित्रः आगच्छति अयोध्याम् एव दशरथाय कथयति। किं कथयति? राम लक्ष्मणो दीयेताम्, राम लक्ष्मणो दीयेताम्। तर्हि तस्मिन् समये अपि समाजस्य कल्याणाय यज्ञ कर्माणि सम्यक्तया भवेत्। कल्याणाय, किं कल्याणाय? यज्ञ कर्माणि इत्यादि सर्वेपि। तदर्थं ते यत्नशीलाः भवन्ति। शास्त्र रक्षणाय ते यत्नशीलाः भवन्ति। आयुर्वेदः अपि, आयुर्वेदेपि चरक मुनिना, सुश्रुत मुनिना, धन्वन्तरी संहितायाम् अपि धन्वन्तरिणा यद् यद् कथितं तद् मानवस्य योग्य आहारः कः, विहारः कः, निद्रा क्रियति, निद्रा कीयति अपेक्षते, तेन स्वास्थ्यं सुरक्षितं भवेत्। एतत् सर्वम् एते महापुरुषैः समये समये उक्तम। ये सब जो समय है उस समय पे शास्त्र ने हमें प्रदर्शित किया है, सामने रखा है कि ये करना है, वो करना है। भगवान श्री कृष्णः अपि श्रीमद् भगवत गीतायाम् अर्जुनस्य माध्यमेन मानवाय कथयति। मानवाय किं कथयति? यत् भवतां सर्वेषां हितं कुत्र निहितम् अस्ति इति युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाय बोधश्च योगो भवति दुःखाः। कारणं मानवस्य योगक्षेमस्य तु चिंता नास्ति। कारणं स्वयं भगवानः कृष्णः कथयति, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगः क्षेमं वहाम्यहम्, तव भोजनस्य चिंता मया कृता वर्तते इति कृत्वा त्वया तु स्वशरीरम् एव रक्षणीयम् अस्ति। महाकवि कालिदासः अपि कुमारसम्भवे कथयति, शरीरम् आद्यं खलु धर्म साधनम्। यदि धर्माचरणं कर्तव्यम् अस्ति चेत् शरीर रक्षणीयम्। शरीर रक्षणीयं चेत् अस्माकं शास्त्रानुकूलं जीवनं यापनीयम्। यदि यत् अनुकूलम् अस्माकं जीवनम् अस्ति, यदि अस्माकं जीवने बहवः कर्मः, किम् अत्र अस्माकं
हितं निहितम् अस्ति। कः हितं कः कल्याणम् अस्य बहवः चर्चा अपि शास्त्रेषु वर्तते। विश्वस्य हितं संस्कृते निहितं तद्वाक्यं तदा पूर्णं भवति यदा विश्वे स्थितः मानवः स्वकीयं जीवनं संस्कृते गोपयति, स्थापयति, यापयति। कारणम् एकस्य मनुष्यस्य जीवनं हितपूर्णं भवति चेत् क्रमेण संपूर्णस्य विश्वस्य अपि हितं संस्कृते निहितं भवति। पतंजलि मुनिना योग मार्गः प्रदर्शितः दत्तः अष्टांग योग विषय प्रदत्तः न स्वस्वार्थाय योगक्षेमं वहाम्यहम् इति विषयोपरि किंचित् यदि वक्तुम् इच्छामि, ऐसा शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जितने ऋषि मुनि है, जिसने ग्रंथ लिखा है, वो जो ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ किसके माध्यम से लिखा है? जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें सभी ऋषि मुनियों को हम देख सकते हैं। तो सभी ऋषि मुनियों सिर्फ उसने किया क्या है, उसने ग्रहण क्या किया है? उसने अपना जो भी है वो सब स्व कल्याणाय नैव परोपकाराय। वेद व्यास है, ये तो वेद व्यास जी ने, भगवान वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण उसने जो रचित किए हैं वो संस्कृत में है, लेकिन वो अपने लिए नहीं, निज हेतु नहीं, सुखदेव जी महाराज को वो समर्पित किए। सुखदेव जी महाराज को वो क्यों समर्पित किए उसने? श्रीमद् भागवत, यदि हम सोच सकते हैं कि श्रीमद् भागवत पुत्र है, तो पुत्र होने के कारण उसको जो वारसाई मिलती है तो वारसाई में वो दिया है, ऐसा नहीं है सर जी। वो पात्रता है उसके अंदर, श्रीमद् भागवत को एक्सेप्ट ग्रहण करने की पात्रता है सुखदेव जी महाराज में। इसीलिए वेद व्यास जी ने उसे वो भागवत दिया है कि ये ले स्वरक्षणाय नैव। सुखदेव जी महाराज ने भी वो जो भागवत जी है वो भागवत जी किसे दी? परीक्षित राजा को दी। उस ज्ञान से, उसका जो नॉलेज है, उस नॉलेज से उसने क्या किया? उद्धार किया। तो जो शास्त्र है वो शास्त्र अपने रक्षण के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए यदि यूज करता है हम, तो वह रक्षण, वह हित होता है। विश्वस्य हितम। शास्त्र में ऐसा भी एक जगह मैंने पढ़ा था कि जितने भी ग्रंथ है, जितने भी ऋषि मुनि है, उसको हम यदि देखें तो वो सब किसके लिए खड़े हैं? हमारे लिए ही, संस्कृत के लिए ही, परोपकार के लिए ही। वो परोपकार है ना, वही सबसे श्रेष्ठ साधन है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, वो तेरा है, ऐसी जो सोच रखते हैं वो छोटे मन वाले होते हैं। और संस्कृत में उसे क्या, ऐसी जो सुक्तियां है, तो वो सुक्तियों के माध्यम से हम कितना बच्चों को देश महोदय ने कहा था कि पंचतंत्र उसमें इन्वॉल्व किया है, तो सही है, क्योंकि पंचतंत्र में ऐसी शॉर्ट स्टोरी है छोटी छोटी, तो उस स्टोरीज के माध्यम से बच्चों को कितना सारा नॉलेज मिल सकता है। अपरीक्षित कारकम, बिना सोचे कुछ भी कार्य करना नहीं चाहिए, तो ये अच्छी बात है उसमें से। कारणम शास्त्राणाम एका इयम अपि उदात्ता परंपरा वर्तते, मया यत् किमपि क्रियते मम परिवाराय मम कुटुंबाय केवलं मम जीवनाय एव क्रियते अपि न अपितु राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम। अयम उत्तमः विचारः अस्ति येन त्याग भावना आगच्छति।
यदि उत्तम विचार अपने मन में रहेगा तो उसके कारण अपने शरीर में त्याग वृत्ति आएगी। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में लिखा है कि त्याग बड़ा है या संग्रह बड़ा है। आप इकट्ठा कर लो सब तो वो संग्रह है, वो संग्रह बड़ा है, या जो अपने पास है उसका त्याग कर दे तो वो त्याग बड़ा है। यही बात बच्चों को हम अच्छी तरह से उसके दिमाग में बिठाए ना तो संस्कृत क्या है, संस्कृत को ग्रहण करने से हम महान बनते हैं, या संस्कृत जो हमारे अंदर है वो दान करने से, उसका त्याग करने से। 1 रुपये का आप त्याग करोगे तो ही कोई ना कोई चीज मिलेगी आपको। यदि त्याग नहीं करते हैं, संग्रह करेंगे तो वो संग्रह किस काम का? उसका त्याग अति आवश्यक है। तो राष्ट्र के कल्याण के लिए करुणा, स्नेह, दया, अनुराग, प्रीति, भक्ति, सेवा, समर्पण, तितिक्षा एते सर्वे अपि उदात्त गुणाः संस्कृते निहिताः सन्ति। एतेषां सर्वेषां गुणानां परिपालनेन मानवस्य हितं तत्र सुनिहितं भवति। यदि मानवस्य हितं सुनिहितं अस्ति चेत् समग्रस्य विश्वस्यापि हितं सुनिहितं भवति। अतः यदि मानवः विचारयति मम हितं कुत्र निहितं चेत् तस्य प्रश्नस्य एकम् एव उत्तरं वर्तते, शास्त्रेषु तस्य हितं निहितम्। एतञ्च सर्वाण्यपि शास्त्राणि संस्कृत भाषायाम् एव लिखितानि सन्ति। अन्य पुराणेषु वाल्मीकि मुनिः रामायणस्य रचनां करोति न स्वस्वार्थाय नैव अपितु जगतः कल्याणाय, जगत के कल्याण के लिए उसने रामायण की रचना की है। वेद व्यास 18 पुराणानां रचनां करोति किंतु सुखदेवस्य वित्तकोश वृद्धिः भवेत् तदर्थम् अपि न। किं कारणेन सुखदेवस्य वित्तकोशः वृद्धि? विश्वस्य ज्ञानकोश वृद्धिः भवेत् तदर्थं करोति। श्री सुखदेव मुनिः वित्तस्य चिन्तां न करोति, चित्तस्य चिन्तां करोति। यदि अस्माकं चित्तं सुरक्षितम् अस्ति चेत् वित्तं तु आगच्छति गच्छति वा, किन्तु यदि चित्तं स्थिरं भवति, बुद्धि स्थिरा अस्ति, मनः स्वस्थं भवति, शरीरं सुन्दरम् अस्ति, आरोग्यप्रदम् अस्ति चेत् तत्र अस्माकं हितं सुनिहितम्। संस्कृतस्य एकः अपि ग्रन्थः तादृशः नास्ति यस्मिन् ग्रन्थे मानवस्य विश्वस्य हित विषये चिन्ता न कृता, चर्चा न कृता स्यात्, चिन्तनं न कृतं स्यात्। अतः सर्वे अपि दर्शनग्रन्थाः, सर्वे अपि आध्यात्मग्रन्थाः, सर्वाण्यपि शास्त्राणि एतत् सर्वम् अपि मानवहिताय एव सन्ति, मानव कल्याणाय एव वर्तन्ते। धर्मस्य विजयो भूयात्, धर्मस्य विजयो भूयात्, अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः, भूयात् विश्वस्य मंगलम्। प्रार्थना संस्कृत भाषायां विहाय अन्यासु भाषासु अस्माभिः न अवलोकहिता वर्तते। अतः अनेन स्पष्टं भवति यत् भारतस्थ महापुरुषैः सदा सर्वदा विश्वस्य एव चिन्ता कृता। विश्वस्य हितम् एव मम हितम् एतादृशः संकल्पः उद्घोषयति। विश्व का कल्याण कैसे होता है और विश्व के हेतु से उसमें हम देखें तो कल्याण के बजाय हमें संस्कृत कैसे आगे बढ़े, उस कारण से हमें अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए और आप जैसे गुरुजनों के माध्यम से हमें भी कुछ न कुछ उसमें अच्छी तरह से प्राप्त होता है। तो
आज का ये जो यदि त्रुटयः स्युः तर्हि क्षन्तव्याः मया किञ्चित् उक्तम, किंतु अद्य आज जो ये पहला दिन है मेरे लिए, ये बड़ा सेमिनार का लिए, उसके लिए मैं आप जितने जितने बड़े लोग इधर है, बड़े बड़े गुरुजनों है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और पवन जी थैंक यू, मदन जी जयदेव थैंक जी यू। नमस्कार जी। जयदेव जी आपसे एक निवेदन है जी, हाँ जी, बिफोर द नेक्स्ट स्पीकर कम्स, 1 मिनट में थोड़ा सा बता दीजिए जी आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, 1 मिनट में थोड़ा सा। हाँ, मैं सर राजकोट में त्रंबा के पास ग्लोबल आयुर्वेद कॉलेज है, उसमें 5 साल से लेक्चरर हूँ। और पोरबंदर सांदीपनि विद्या निकेतन जो रमेश भाई ओझा का है, तो मैंने वहाँ मीडियम संस्कृत में 8 साल पढ़ाई की है। और मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी 13 साल का है। पहले मैं स्कूल इत्यादि 11th-12th साइंस में संस्कृत पढ़ाता था, और आयुर्वेद कॉलेज चालू हुआ है तब से मैं ग्लोबल में पहले से ही ज्वाइंट हूँ सर। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। अगर जयदेव जी अगर आपके एक वेबसाइट वगैरह हो थोड़ा सा डाल दीजिए जी चैट बॉक्स में। हाँ जी, नमस्कार जी, थैंक यू फॉर, आज समय की वो रिस्पेक्ट करने के लिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। क्यों पवन जी, आपके पास टाइम कितना है जी? 2 हमारे साथ विनीता कुमार, विनीता कुरुप है जी हमारे साथ। पवन जी आप म्यूट चल रहा है। विनीता जी नमस्कार। I would like to invite Dr. Vineetha V. Kurup, Associate Professor, Department of Sanhita and Siddhant, JS Ayurveda Mahavidyalaya, Nadiyad. Welcome, Dr. Vineetha. Welcome. Welcome. Namaste, sir. Namaskar. Very happy to have you with us. We look forward. Yes, sir. Yes. Sure. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Very good evening to all the dignitaries in front of me, especially Dr. Pawan Sharma sir and Madan sir, Premchand Shastri sir. So I am so delighted to be there, to be a part with this webinar. So मेरे पहले का जो भी स्पीकर्स है, respected Dr. Unnikrishnan sir, Ramadas sir, all have delivered a worthwhile talks regarding the Sanskrit language. So I think before we start with actually the importance of Sanskrit language, let us see or let us discuss some points regarding, or let us discuss some milestones which has happened to the Sanskrit language from the time unknown till now. So when we see the history, as Unnikrishnan sir told, Sanskrit is the mother of all languages. Samskritam is a classical language of South Asia that belongs to Indo-Aryan branch of Indo-European languages. So it is believed that it arose in the South Asia in the time of late Bronze Age. So that was believed to be the time of, origin of Sanskrit language. So as I told, like Indo-European family of languages, उसमें से सबसे important जो language है, that is Sanskrit. And when we see the ancient languages of the world, the 3 most ancient languages of the world, when we see that, the first one is of course the Vedic Sanskrit. Second one we can say like it is the Mycenaean Greek, and the third one is called Hittite language. So these 3 are believed to be the ancient languages in the world. So of course the Vedic Sanskrit is one among that. So when we see the Sanskrit language indeed, the language we can bifurcate or divide in actually 2 ways. One is told it is the Vedic Sanskrit, and the second one is the classical language.
So Vedic Sanskrit is actually the pre-classical form of Sanskrit language, or we can say it is the precursor of the classical Sanskrit. So like the Vedic Sanskrit, we can find the first ever book which has happened in the world is believed to be the Rig Veda, which is written in the Vedic Sanskrit language, and which is a Hindu scripture, and not only a Hindu scripture, it is belonging to all religions, and it is a collection of around 1028 hymns composed between 1500 BC around. So that is about the basic about the Vedic Sanskrit. And it is believed to be developed in the late Bronze Age. Or Bronze Age mein aisa tha, when we see the Bronze Age, which is coming after the Stone Age, during the Bronze Age, the people have developed many skills. Like the most important one is the development of writing. So when we see the history, the cultures of Mesopotamia as well as Egypt developed the earliest practical writing systems. And when we see the different civilizations of the world, the civilization which has happened in the Near East, in the region of India, Pakistan and Afghanistan. So this area is considered as was considered as a cradle of all the civilizations. So, and even this is the part where it has entered into the late Bronze Age very soon. So where people have learned many things like development of writing systems. They have developed astronomy, astrology, the medicine. They have they have developed or created a centralized governments. They have invented the potter's wheel. So like that, so in that, the most important one is development of writing systems. So when we see the Vedic Sanskrit, we can say many words which are coming. So for example, like when we see like Unnikrishnan sir told, like matru, the word matru itself, we can say the English word mother, we can say the Hindi word ma, or all the things are related to the words which are having the meaning of mother or mataraha. So that is the root for origin of the word mother in all the languages. So like that, we can say the Vedic Sanskrit is becoming, or it has become the precursor language for all the languages. So when we see the other part of Sanskrit, that is called Sanskrit in classical, or we can say the classical Sanskrit, it is completely devoted to Panini. So he has formulated the Sanskrit language in such a way that he has included the bhasha along with its proper lipi, and it is also included with the proper vyakarana, and the language as such is developed by Panini. So we can say the classical language is the contribution of Panini himself. So he has composed a book called Ashtadhyayi. Between it is believed that it has happened between 6th and 4th centuries BC, around 500 BC. And there are many quotations, like we say, like there is a quotation in Pandita Mandali that Kanadam Paniniyam cha Sarva Shastropakarakam. The Kanada Maharshi's book, that is the Vaisheshika Darshana Sutras, and Paniniyam, the book which is written by Panini, is helpful in understanding all the sciences in the world. So that's what the importance of Ashtadhyayi of Panini is. And it has influenced the Sanskrit language in such a way that even now it has such a depth. So for that, we indebtedly we can dedicate the Sanskrit language to Panini. The Ashtadhyayi of Panini was considered as the intellectual wonders of the ancient world. So in his book, Panini has quoted several, around 10 acharyas. The name of 10 acharyas are especially told, and he has told that
there are contributions from all these acharyas, so that the book has refined. So such as like Kashyapa, like Bharadwaja, like Galava, Gargya. So these are all few such acharyas who are mentioned by Panini in his book. So we can say like these are all were the contributors for the book that is written by Panini. And Ashtadhyayi of Panini become the foundation of Vyakarana, that is a Vedanga. And after that, the greatest dramatist in Sanskrit, like Kalidasa, wrote classical Sanskrit, the books in classical Sanskrit. And the two major epics, we cannot forget those, the Mahabharata as well as Ramayana, originated between the 400 BC and 300 BC. So that is also written in the classical Sanskrit language by Valmiki as well as Vedavyasa. And the first reference of Sanskrit to be as a language is given in Ramayana. So we can see the reference in Sundarakanda, like Hanuman says, Aham hi aditanushchaiva vanarascha visheshataha vacham cha udaharishyami manushimiha samskritam. So Hanuman says, Aham hi aditanushchaiva, even though I am very tanu, very small or subtle, vanarascha visheshataha, and even I am a monkey. So I should explain everything to you in a language which you can understand. Manushi miha samskritam. So that tells, or that with that line we can imagine, or we can do the anumana that those days Samskrita was the language which were used by the humans. Coming to the lipi which is used for Sanskrit. So in olden days, like in the period of Vedic Sanskrit, originally it was orally transmitted, but it is found that the oldest datable Sanskrit systems for Sanskrit are the Brahmi script. And one more thing which is related to that script is Kharoshri script. So these two scripts, Brahmi as well as Kharoshri, so these two existed for so long, and after a while what happened, the Kharoshri script has become extinct and only Brahmi script has popularly used for doing all the Sanskrit works. So nowadays what we use is the Devanagari script, and so on it goes. So in between that, so after the period of Mahabharata, the epics, there is a decline of Sanskrit language in India, especially after 13th century. So this coincides with the beginning of Islamic invasions in South Asia to create and thereafter expand the Muslim rule. So in the form of Sultanates and the late Mughal empires. So that period was considered as the period which brought some decline to the Sanskrit language. So coming to the current day Sanskrit, there has been a profound influence in Sanskrit language on the lexical as well as grammatical systems of Dravidian languages. So we Indians believe Sanskrit to be a very eternal language, and we believe that it is Anadi as well as Ananda. It is not having an Adi as well as it is not having an Anta. And by this, when we see the history of other languages, origin of other languages, we find that whenever regarding the North Indian languages especially, it is found to be originated from the original Sanskrit, classical Sanskrit language. The first two languages which are believed to be originated from Sanskrit are, one is Pali as well as the other one is Prakrit. So the Pali is the language which was followed by the Bauddha Darshana Karyas, as well as the Prakrit is the language which was followed by Jaina Darshanas, the followers of Jaina Darshana. So many books in Bauddha Darshana are found in Pali language, as well as Jaina Darshana is found in the Prakrit language. And after a while, what happened? The Prakrit language
which was most familiar in the northern part of India, or different states of India like Gujarat, Maharashtra, like Madhya Pradesh, and even UP, etc., where there were some changes in that language, and every state or every regions were named this particular language as something different. Like there were Paishaji, Shauraseni, Magadhi. So these are all the branches of the Prakrit language itself. So like that, there was some changes that has happened to the Prakrit language. And even after that, maybe around a century later, there is still more Abhabramsha which has happened to those languages, and the Abhabramsha languages has come into existence, like Paishaji Abhabramsha, Shauraseni Abhabramsha, etc. Ardha Magadhiya Abhabramsha, like that. And what the in Hindi language, what it is there now, which is the official language of India, is believed that it is originated from the Shauraseni Abhabramsha. So these are all is seen when we see the history of Indian languages. And there are large number of loan words which are found in vocabulary of the Dravidian languages too, that is especially Malayalam, Kannada and Telugu. More than 300 Sanskrit words have been composed since India's independence. So coming to the current day Sanskrit, the Sahitya Akademi is giving award for the best creative work in Sanskrit every year since 1967. In 2009, Satyavrat Shastri became the first Sanskrit author to win the Jnanapeetham Award, the India's highest literary award. So that all shows the importance of Sanskrit language in present era, or the support to the Sanskrit language which is given by the India government. The Sanskrit is used extensively in Carnatic music, Hindustani music, and the branches of other classical music. Different kirtanas, bhajans, stotras, all are popular throughout India. All four Vedas, not only Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, and Atharva Veda, have notations which are given in Sanskrit language. Since 1974, there has been a short daily, it is propagation from India government, that the news broadcast in All India Radio, and there is a live broadcasting of the news in the DD national channel also, and it has taught in different schools of India, and Sanskrit is taught in 500 traditional schools, that is Pathashalas, as well as 14,000 schools in India. In modern times, the first Sanskrit university was Sampurnanand Sanskrit University, established in 1791. 22 colleges and universities which are dedicated to the study of Sanskrit language. Sanskrit is one among the 22 scheduled language of India. In March 2020, Indian Parliament passed the Central Sanskrit Universities Act, which upgraded the major three universities. One is National Sanskrit University, Tirupati. Other one is Central Sanskrit University, Tripura, as well as Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi. We cannot forget the scientist, Shastri sir, as well as the other dignitaries has told a very good speech regarding the importance of Sanskrit in Ayurveda. All the classical texts like Charaka Samhita, like all the Brihatrayis as well as Lagutrayis, Charaka, Susru Samhita, Ashtanga Hridaya as well as Ashtanga Hridaya, Ashtanga Sangraha, all the books, and along with the books of pharmacology like Sharangdara Samhita, Bhava Prakasha Nikandu, all these are written in Sanskrit language. So in order to understand this subject in depth, indeed,
we should have the knowledge of Sanskrit language. So this all shows the importance of Sanskrit language in present era. So I think with this, I can stop my talk now. Thank you so much for being with us today. You have Madan, Thangavelu sir, as well as Dr. You have given us thank you, a sir. very wonderful historic description of how the language has evolved, and particularly like your mention of all the parashalas and the numbers that are there, which we were not familiar with. Now, Pawanji has challenged us by bringing so many speakers together for a small amount of time. So apologies for not for rushing you a little bit if we were, but what I would request is to have you with us again. Ramadas ji is thinking about some structure for bringing all of us together again. So I know you know Ramadas ji from your Sanskrit studies. So please stay in touch. I'm so happy that I could talk with. We have connected in this way. Thank you so much for joining us today. And we come to our please stay with us because there are one or two questions. I can see in our audience, there is Stina Anderson who is joining from Sweden. She is also wanting to ask you some questions. But before we go to the audience, I invite Pawanji. We are almost to our last speaker now. I would like to invite Professor Panduranga, MN, Professor, Rajiv Institute of Ayurvedic Medical Sciences, Hassan. Welcome, Professor Panduranga ji. Kindly unmute yourself. Welcome. Thank you, sir. Sarvebhyaha namaskaraha. Chaturmukha mukham bhojam vanaham savadhur mama manase ramatam nityam sarva shukla saraswati. Adhya matrubhashadhinam. Idanim prapratamaya aham sangathanam krite namaskaran samarpayami. Samskrita bhasha sarva bhashanam janani. Asmakam krite jnanasya avashyakata asti chet prapratamaya samskrita bhasha jnanam avashyakam asti. Ayurveda we cannot see your face. Somehow your camera is not positioned correctly. If could you do change? Is it clear, sir? Much better, but there is a strong light coming from your back. If you sit the other way around, maybe it will be. We will be able to see you more clearly. I also think the lens on your mobile phone might have a little bit of might be the reason for this cloudiness. Maybe it needs. Now it's clear, I think. Oh, Pandurangaji, I request you maybe just to gently, if there is a way to just clean the lens of your mobile phone, then I think there is something. Now is that? Well, if that is the best you can give us, but I think the cloudiness is coming from the lens of cloudiness is coming from this one. Now it's somewhat clear, I think. Well, if that is the best you can do, we will have to continue. Thank you. Hello? We can hear you. Thank you, sir. Yeah. Can I continue, sir? Please. Yeah. Ayurveda adhyanartham Samskrita bhasha jnanam bahu avashyakam asti. Sarve Ayurveda grantha Samskrita bhashayameva padanam Panduraganji, we have lost your voice. Sandhi Vyakarana jnanena. Not clear? Bahu avashyakata Vyakarana jnanena Charaka Sushruta Vagbhata granthanam Anya granthanam adhyanam tata bhavati. Idanim perfected or refined
is one of the oldest of all attested human languages. It belongs to the Indo-Aryan branch of the Indo-European family. The oldest form of Sanskrit is Vedic Sanskrit that dates back to the 2nd millennium BCE. Known as the mother of all the languages, Sanskrit is the dominant classical language of the Indian subcontinent and one of the 22 official languages of India. It is also the liturgical language of Hinduism, Buddhism, Jainism, and absolutely the language of Ayurveda as a part of Veda. Originally, speech, but a refined way of speaking, a marker of status and education for society. It existed alongside spoken vernaculars called Prakrits, which later evolved into the modern Indo-Aryan languages. Sanskrit continued to be used as a first language long after it was no longer spoken. Example, there was a many granthas was there. In India and in Southeast Asia, Sanskrit enjoys a status similar to that of Latin and Greek in the Western world. According to the 2001 census reported in Ethnologue, it is used as a first language by 14,100 in India and by 15,770 persons worldwide, as well as by 1,94,000 as the second language in India. Even though it is not a spoken language, its significance in such that it is one of the 22 official languages of India. Sanskrit exerted a great deal of influence on all languages and cultures of the Indian subcontinent and beyond it. Sanskrit mantras are recited by millions of Hindus. By most temple functions are conducted entirely in Sanskrit, often Vedic in form. Example, in Anandavalli, they explains about the Utpatti of Panchamahabhutas as Akashad Vayuhu, Vayoragnihi, Agnerapah, Adyah Prithvi, Prithivya Oshadayah, Oshadibhyo Annam. Here, the explanations about the Utpatti of Panchamahabhutas, and these are the cause for the creation of the world, that is Sarvam Dravyam Panchabhautikatvam. There have been recent attempts to revive Sanskrit as a spoken language so that rich Sanskrit literature could become accessible to everyone. Sarala Samskrita Bhasha classes will help for that. In this example, Dasha Prashnottari, written by Bhana, in this text, right to left one meaning and left to right another meaning, and each word has 4 to 5 meanings. And this text deals with Advaita Vedanta, 100 questions of disciple and answer of Guru. In one Subhashita, the Bhartrhari explains about importance of Vidyas as Nachoraharyam, Nacharajaharyam, Na Bhratrabhajyam, Nacha Bharakari, Vyaye Krite Vardhate eva Nityam, Vidyadhanam Sarvadhana Pradhanam. According to history, we are able to assess as the Sanskrit is the oldest language, and also we are able to identify the similar terms in all other languages. If you take Hindi language, similar writing script itself shows the similarity between Hindi and Sanskritam. And maximum terms are common in both languages, but in pronunciation,
is entirely different, because the Sanskrit word meaning and gender is normally based on pronunciation. For example, in Sanskrit, pada's gender, the linga of the pada, is not identified on the base of the meaning of the word. Normally, pullinga pada is identified on the base of the visarga at the end. Strilinga normally with the dirgha rupa pronunciation at the end. If pada ends with ardhakshara, it is considered as napumsakalinga pada. We can't assess the gender on the base of the meaning of the word. For example, if you take Ramaha, Krishnaha, Sudhiraha, etat prakaram, sarve pullinga padaha, visargantaha. Tatha, if you take the word of Shala, if you observe the meaning of that word, you feel it is the napumsakalinga. But when you observe, when you know about the Samskrita Vyakaranam, Shala, Akaranta Strilinga Pada, Strilinga Rupe Eva, iti Jnanam. Vanam, Khalatram, Khalatram. If you take the meaning of that, Patni. But the word is in Napumsakalinga. So this Jnana, we want to get only through the grammar part. Otherwise, we can't assess that. And if you take the English language, in English, now only the madam told, the mother is similar to the word of matru, brother, bratru. You see, one specific term is there in English. In English, we are using the term that, T-H-A-T, that. And the meaning indicates the object which is far away. For the same Sanskrit, we are writing tat, tat. If you do the transliteration of tat, we are using T-H-A-T. The same transliteration. And pronunciation is tat. The spelling is one and the same, which is there, that in English. In Samskrita, we pronounce it as tat in Samskrita. The meaning is one and the same. It shows the similarity. And if in English, if you say no, in Samskrita, we are saying it as na. We are saying in Samskrita as na. If you take in some other languages, if you take Tamil, prasada, the word is used to rice. In Sanskrit also we are using prasadam. Word is used with the same meaning. Vayu is there in Samskrita and even in Tamil. To know our great Indian culture, Sanskrit language is must, because all our ancient texts are in Samskrita books, many translated books in all the languages, but they are not useful to feed the knowledge as it is. In Samskrita, we can understand the meaning of the pada by grasping its etymology or vigrahavakya. But in other language, it is impossible. For example, if you take padapaha, if you take the etymology of the word, padat piyate iti padapaha, which one sucks through its pada, it's a root, from its root, that we can call it as padapa. Padat piyate iti padapaha. This is the etymology of the word padapa. Easily we are able to grasp the meaning of that word, how it is. Because in many languages, we can't get the exact translated terms. We can't expect exact translated term of Samskrita in other languages. For example, if you in English, word kavi in English, actually we can't get the exact translation in English. The word, you see, kavi is there in Samskrita, there is no exact translation in English. If you say author, only who write the prose. If you say dramatist, only who write dramas. If you say poet, only who write poems. But kavi, who is one and all, who is everything, who knows very well. So like that, in the same way, in Ayurvedic terms like vata, pitta, kapha, we are not getting the exact translation terms. So if you read
the translated books, we can't understand the real word meanings, because through vyutpatti or etymology only we can understand the reality of that word. The classical Sanskrit has 48 phonemes. The Vedic Sanskrit has 49. Phonemes are sounds that make a difference in word meaning. If you say phalam, phalam, then it gives a meaning as fruit. If you say pala, pala, then it gives a cow dung. The meaning is cow dung. Phalam, phalam, if you say. Phala means fruit. Pala means cow dung. So pronunciation is very important. That is the main part in the Ashtadhyayi. The Panini explained about the Varnotpatti Sthanani. Akuha Visarjaniyanam Kantaha, Ichu Yeshanam Talu, which is well known to everybody. So that knowledge is very important for the proper pronunciation of the words. And the oldest serving Sanskrit grammar is Panini's Ashtadhyayi of classical Sanskrit, dating back to about 500 BC. His rules helped systematic Sanskrit grammar. For example, if you say Sandhi, the Adesha, simply we can't say Gana plus Isha, Ganesha, Sura plus Isha, Suresha. How A plus E should become A? Why it is not some other letters? For that, a specific scientific explanation they are giving in the Sutra, Sthane Antaratamaha. Sthane Antaratama Sutra explains about the rules of Adesha Sandhi, how the specific letter comes as Adesha after the combination of two letters. Sanskrit is highly inflected language which uses prefixes, suffixes, infixes, and reduplication to form words and to represent grammatical categories. If depending on Sanskrit translated terms, many times we are getting opposite meanings than its real meaning. For the simple example I am giving, if you take the word as Nagara, Nagara, according to Sanskrit meaning, if you take the exact term meaning of the Nagara, Gara means poison, Visha. Nagara means which is poisonless, which is pure. That is the exact meaning of the word Nagara. Where there is no poison, where there is no purity is there, cleanliness there, freshness is there, that is called as Nagara. In olden days, when thick population happened, some of the persons are going somewhere where they are getting sufficient good water and air, everything, which was called as Nagara. But nowadays, which one we called as Delhi Nagaram, Bengaluru Nagaram, Vishakhapatnam Nagaram, that Nagara is full of poisonous. You see, the Nagara word meaning is pure, clean, but now we are using that word with the meaning of full of poisonous. So like that, when we are thinking about that, the very important is how we are taking the meaning of that. So for that, we want to know about the etymology of the word for everything, how the word is framed, which is the pratyaya, which is the prakriti, is it supratyaya or thing pratyaya, is it past, present, future? To know, for example, one more differences normally we are observing in Kriyapada Dhatu, Prathama Purusha, Madhyama Purusha, Uttama Purusha is there. And we call it as first person as Prathama Purusha, second person as Madhyama Purusha, and third person is Uttama Purusha, like that in English. But here, Prathama Purusha itself is third person in Samskrit actually. When you are doing the translation, these mistakes will happen. Prathama Purusha is in Samskrita, Prathama Purusha indicates the third person. But if you do the translation, Prathama Purusha means first person. So that is the differences happens actually. So the teaching style to the Ayurvedic students is very much important. The word-to-word meaning and the etymology of the each and every word, its sandhi, samasa, grammatical points, vyutpatti of the words, everything is very important. For simple example I am giving, which is the first shloka we are studying in Ayurvedic colleges.
hitahitam sukam dukkam ayustasya hitahitam manancha taccha yatroktam Ayurveda Sauchyate. This is the first shloka when the students are joining, they are learning this shloka. If you ask the meaning of the shloka, even for the final year students, PG students, what explanation they are giving, just the science which explains about hita, ahita, sukha, dukkha, and mana. Okay, the measurement of the ayu is called as Ayurveda. Only this much explanation they are giving. But when you observe the shloka, hitahitam sukam dukkam ayustasya hitahitam. You see, just you observe the first line, hitahitam word is repeated twice, but not sukha dukkam. You see, hitahitam sukam dukkam ayustasya hita. Why the hita is repeated twice, but not sukha dukkha? That explanation, that knowledge is important to the students. Blindly they are learning some of the bhavartha of the shlokas, which is not correct, which is not suitable to understand the kavyas in the form of what we call it as the kavya shastra rupa adhyayana, which is not perfect. So word to word meaning knowledge is very important. Its etymology, its utpatti, and in which vibhakti, which vachana, every knowledge. Slowly, what the sir already told, through Panchatantra and all, when we are going each and every sentence, at that time, pratyayas, past tense, present tense, singular, plural, everything if you explain to those, after hearing again and again and again, they are able to grasp the things. So in this way, according to my knowledge, the way of now, what the new implementation is there to the Ayurvedic colleges, the pattern of teaching Samskrita, it is best for according to that status, they are become very much attractive. They are become very much attractive, and they are able to get good knowledge, even not only in Samskrita. Through that Samskrita, they are able to become very best Ayurvedic doctors. Now, many of the Ayurvedic doctors are following the modern method of treatment because they are not perfect in Samskrita Bhasha. If they are perfect in Samskrita Bhasha, they are able to understand the Charaka Samhita, Sushna Samhita, Vagbhata Samhita 100% exactly according to the author's aim, author's opinion. When they are grasping that much, they are able to follow the Ayurvedic treatment very clearly. So the whole world is turned towards the Ayurveda and it becomes very popular. So this is my opinion, and this is what I know about the speciality of the Samskrita Bhasha, among all the bhashas. So I express my view through this information. Panduranga, thank you so much for thank you, sir. Thank you so much for being with us today, and thank you for sharing. I think we have got the same passion that Ramadas Ji shared and others have shared about the need for Sanskrit in Ayurveda education. You have given many examples. I give the platform to Pawan Ji. Pawan Ji, you have been very ambitious today. You have brought so many people to the platform, but time is your enemy also, because I know you like to wake up at 3:30 in the morning to join the Aarti in Kashi. So, and now participants are also 50% remaining only. Okay, I leave this. I just before I finish, I want to thank Professor Shastri ji, namaskar. Thank you for starting this event today. And I think you have your idea that we need to revisit Samskritam and Samskritam in Ayurveda education, the importance that has come through very clearly from all our contributors. I'm sorry that we missed somebody here who was with us from the Sanskrit University, Muhammad Islam, who was President Medal winner for Arabic. He was listening to our events all of the time. Now, as we are running out of time, I wish to draw this event to a close. But before I do that, for all the scholars who are here, to show the connection that is there between Samskritam and many of the languages here in Northern Europe.
Stina ji sent a message saying, in our language, in Swedish, there is one word that describes and is used to talk about connection. And I said, Stina ji, what is that word? And she said, in Swedish, we use a word called samband. And that word is to show, it means connection. And this is the kind of universality that we see in Latvia. Latvian is another language that has a very close connection with Sanskrit. And Ashtanga Sutrasthana has now been translated into Latvian by Professor Valdis Pirag. But my feeling is something is lost in the translation. And that is the question that was at the heart of today's discussion. And I think that which is lost in translation can only be achieved and revived if we go to the very depths of Sanskrit that Ramadas ji and others have presented today. The importance of Sanskrit in understanding Ayurveda and perhaps also the yoga and other systems comes through very clearly. We have to gather again because there is so much to discuss. Perhaps Agnihotri ji and Pawan ji will bring us all together into a much more larger program of activity. So before I conclude, I want to thank everybody who presented today. We had a good audience, at least on the Zoom platform, there were many people, and perhaps there will be many, many more people watching us on YouTube. So I want to thank everybody for being with us today, a very, very important topic, and some of the points touched on, especially by Panduranga ji, you have touched on some very, very important points about the body. I leave it there, and I hand the floor back to Pawan ji to take us towards the next part of the program. Pawan ji, thank you again for bringing so many wonderful people together. Excellent, sir. Excellent. Why you are communicating? Thank you. Please bless the munch and me both. Now I would like to first time Dr. Rajan Patankar ji has introduced. So before Agnihotri ji, I would like to request Dr. Dharmadhikari ji from Pune. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Blessing. Yes, sir. I am Dr. Dharmadhikari. I am Assistant Director of Maharashtra, Ayush. Welcome, welcome, sir. Welcome, sir. बहु सम्यक् संजाता सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि पुनः एतादृशानां संगोष्ठीनाम् आयोजनं भवतां यदि करोतु तर्हि अधिकाधिकसंख्यया अस्माकं सहभागः भविष्यति इति अहं निश्चयपूर्वकं वदामि। अहं न जानामि अधुना यदा कदा आगामी कार्यक्रमः भविष्यति तदा अस्मिन् विभागे ये आयुर्वेद महाविद्यालयः तेषां प्रति तेषां सहभागः अपि भविष्यति इति अहं मन्ये। धन्यवादः। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सॉरी, मेरी गलती है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। अहं संस्कृत पाठशालायां मम शिक्षणं संजातम्। अहं संस्कृतस्य छात्रः। अहं शास्त्री अपि उपाधि मया कृतवान्। अहं संस्कृतस्य छात्रः। यदा राजन् पाटनकर महोदयेन उक्तं तत् मम ज्येष्ठ बन्धुः वर्तते, तस्य आज्ञानुसारेण एतत् मया कृतम्। थैंक यू। डॉक्टर पटनकर सर अपने गार्जियन है सर इस मंच के। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट इंट्रोडक्शन। नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू हैव ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू। Thank you. Pawan ji, if I can take 1 minute from you just to see if Stina ji wants to share from Sweden. Stina ji, namaste. Just 1 minute from Stina ji. Before Stina ji says, sir, on 6th of March, with your kind permission, we have fixed our global Ayush series for Sweden. So please, I am requesting you and Stina ji both to provide me speakers, photo, detail, and phone number to enable me to invite. And I have circulated all over the
speakers our March plan. So please, on 6th, There you is- can conduct Global Ayush series. This is my request. Thank you. Thank you, Pawanji. Stinaji is here with us. She has listened to this and she has many contacts in Sweden, Latvia, and other places, so they will join us. Stina, thank you for, are you still on the train? Are you still traveling, or you are here with us? And you can ask your question to our learned people and leave the question with them so that they can come back and address your question about Nama Rupa. Who gives the name for something? Who Yes. decides what is the name for something? I think this was your question. I hope I understood this correctly. Yes. Yes. I think you did. It's I understood. I have understood that there's the knowledge, the Sanskrit knowledge, is so different from how we learn here and how the language is, and also I could recognize that also the history of how the language was developed or how it was spreading over the world is not learned in the same way here. So it says that the Indo-European language is not really coming from India, but from somewhere close to Russia. So I think we have so much to learn from you, and thank you so much for letting me be here as well. It's amazing. So we have a request from Pawanji that you have to bring together people from Sweden for that day. Number 2, Dr. Yes. Vineetha and other people are also here, so please connect with them, because your question about name and object, how do you give a name to an object? This is a very important part of the Sanskrit language, and there is a whole body of studies on that. Nam Rupa, name and form. How do you give a name to a tree? How do you give? So there is a logic for this. I'm not a Sanskrit person, but I know there is something there. So there are many scholars here who can guide us. So we will take this question up. Stina, thank you so much for being with us today. And thank you for once again introducing the question here in this platform. Many scholars are here. They will guide you in addressing this. And we might even host an event in Sweden on Sanskrit or something with all the scholars here. Thank you. Thank you so much. Namaste. Pawanji, and I think we have, I just want, Pawanji, if we have time, I just want to see if there is anybody on the floor who wants to address. No, Pawanji says no time, that's it. So Pawanji, all yours. Thank you for giving me and introducing Stinaji and her question about Nam Rupa, and there might be somebody who can guide us. So Namaskar ji, thank you from me. सर मेरी पूरी बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है 9 बजे बाद सर। बिल्कुल समझ गया। मेरे को ऐसे नींद के पवन के झोंके आते हैं कि मैं क्या बोलूं सर आपसे। हो गया हमारी। Pawan ji, thank you very much for bringing so many people together. Thank you. Thank you. Now I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir. V.K. Agnihotri ji, आदरणीय V.K. Agnihotri ji, please. धन्यवादं भवान्। वाह, जय हो, जय हो। हम अद्य सर्वेषामेव विद्वानानाम् अभिनन्दनं प्रणामं च करोमि। सर्वेषां विद्वानानाम् अस्मिन् अवसरे अद्य this webinar अलङ्कृतं शोभनं च निश्चित एव काठिन्यं कर्मं अवर समीक्षा मम समीक्षा यत् प्रांशु लभ्ये फलं लोभात् उद्बाहुरिव वामनः। I am very small to comment on the speakers who contributed today, और हमें दुख है कि संस्कृत दिवस या संस्कृत भाषा के लिए अंग्रेजी में चर्चा करनी पड़ी, ये विडंबना ही है। लेकिन हम चलते हैं आज के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर। तो मातृभाषा मेरे समझ से वो भाषा है जिससे माँ पहली बार बच्चे से बात करती है। इसको इतना बड़ा मान दिया गया, स्थान दिया गया है। पितृभाषा तो नहीं कही गई है। क्या पितृ के पास कोई भाषा नहीं होती है? Has the father not got any tongue?
the real tongue or the language itself. Either the tongue, father used to keep mum as if they have not got tongue. So the whole conversation, what I observed silently for 2 and rather 3 hours, that our guest speakers, it is difficult to decide that how much they had been centered of today's topic or they talked around the topic. The problem is this, though they were all great scholars. So right from the importance of today's webinar, I'll start with our हमारे परम मित्र हैं स्थानीय हमारे प्रेमचंद शास्त्री जी। बहुत ही समसामयिक विषय उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर आके अपनी संस्कृत भाषा के साथ में ये भी माने न्याय करने की कोशिश की और बिल्कुल सत्य है। मैं आपको आज से 40-45 साल पहले, बल्कि शायद 60-70 साल पहले की बात बताऊं। पहले एएमएस में हाई स्कूल बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी, जो आजकल इंटरमीडिएट या +2 है विद पीसीबी। तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष, और वहां पर आता था प्रथमा और उड़ुप्पा साहब इसके उदाहरण है। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नागार्जुन हॉस्टल से पहले जो डी ब्लॉक हुआ करता था, वहां उड़ुप्पा साहब रह के पढ़े हैं, प्रथमा के छात्र हुआ करते थे। और उसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय में उत्तर मध्यमा वाज कंसिडर एज इक्वल टू 12+2, और उत्तर मध्यमा प्राप्त को लेके उनको बीएमएस अध्ययन किया। आयुर्वेदाचार्य लिखते थे हम लोग, बीएमएस बाद ब्रैकेट में लिखते थे। और वो उत्तर मध्यमा से बीएमएस छात्र जब बीएचयू में एमडी एंट्रेंस के लिए आए, उनके फॉर्म आते थे, तो जो कि प्रोफेसर शुक्ला जी के साथ में मैं उनका छात्र था और वो डीन हो गए थे, मुझे कई बार ये फॉर्म वगैरह शॉर्टिंग करने की नौबत आती थी। तो हम लोग कर देते थे कि भाई ठीक है, जब बीएमएस है तो एमडी में अपीयर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आ गई, उड़ुप्पा साहब रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर नाग चौधरी साहब डायरेक्टर थे और उसमें प्रोफेसर जीएन चतुर्वेदी जी डीन हुए। तो उन्होंने ये चीज देखी कि अरे उसमें बीएचयू के ऑर्डिनेंस में लिखा रहता था कि स्टूडेंट शुड must have intermediate science education, then BMS from any recognized university, 5 years course, then he is capable to appear in the examination. तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उस आईएमएस में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, उसके बाद से उत्तरोत्तर वर्षों के लिए ये अमेंड किया गया कि अब हम बेसिक क्वालिफिकेशन में पहले इंटरमीडिएट +2 साइंस से देखेंगे, वो हो उसके बाद ही फिर वो बीएमएस होगा, तब उसको वो एमडी के लिए एडमिशन दे पाए। तो ऐसी बहुत सी विडंबनाएं विगत में रही हैं। 80 के दशक में सब था। उसके बाद हम लोग के टाइम पे, जब हम लोग 74 में 73 में एडमिशन लिए थे, तब एक विषय से संस्कृत पास होना जरूरी था इंटरमीडिएट में, और हम लोग विनियम 17(3) अध्याय 12 के अंतर्गत एक विषय में 1 साल अलग खराब करके इंटरमीडिएट विद इंग्लिश करने के बाद पीसीबी के साथ में हम लोगों ने किया था। और चूंकि अभिरुचि रही संस्कृत, हमारे शास्त्री जी अच्छे से हमें जानते हैं, तो इस हिसाब से हमने उसको पढ़ा और हमने इतना सीखा। हमारे गुरुवर बहुत श्रेष्ठ थे। या ही संस्कृत भाषा सर्वेशा में भाषा नाम जननी रूपा अस्ति, वहां से पढ़ाया करते थे। और चंदापीठ कथा, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये सब उनको रघुवंश सब लगवाया और व्याकरण पढ़ाया, और हम लोग अच्छे नंबर लेके निकले। तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होना एक चीज है, संस्कृत भाषा व्याकरण का ज्ञान होना एक चीज है, मतलब साहित्य भी पंचतंत्र जैसे। अब क्या है, लड़का 3 पर्चे बजाय 1 पर्चा हो, सब कुछ हो गया। फिर भी एक अभी व्यवस्था है कि बच्चा अगर फाइनल ईयर तक पहुंच गया और संस्कृत की पूरक परीक्षा पास नहीं की, तो उसे फाइनल पास नहीं माना जाएगा। उसको फाइनल से पहले संस्कृत में तो पास होना जरूरी है। लेकिन आप सब जानते हैं, संस्कृत को बस एक नाम चाहने के बाद संस्कृत पास कर दिया जाता है। संस्कृत जानता कितना है, तो अध्यापकों को आता है। संस्कृत बच्चे को अब 40 पूरक आ जाती है फर्स्ट ईयर में संस्कृत भाषा में, संस्कृत के विषय में। तो फिर यही रहता है, लड़का संस्कृत में शास्त्रीय आचार्य बनने आया है या फिर आयुर्वेदाचार्य बीएमएस करने आया। फिर उसको लड़के, आप जानते हो, दूसरे प्रकार के आंदोलन चले जाते कि भाई ये तो हमारे करियर से खेल रहे हैं, हमको ग्रेजुएट नहीं होना चाहते, इनमें हीन भावना है, ये हमको हमारा करियर स्पॉइल कर रहा है, और छात्र आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो विषयगत मुद्दे बहुत सारे हैं, और हम सब लोग 30, 35, 38 साल के अध्यापन अनुभव और छात्र के साथ संबंध के साथ में ये चीज जान चुके हैं कि अगर संस्कृत, हमने कल भी कहा था कि अगर फिजिक्स का प्रोफेसर
पूरा स्किल पाता है तो संस्कृत का प्रोफेसर क्यों ना पाए। और मैंने तो शास्त्री जी को दिन प्रतिदिन के स्तर पर संघर्ष करते हुए देखा है और पाया। पूर्ण संघर्ष के बाद उनको पूर्णार्थी के रूप में सब कुछ प्रतिष्ठा मिली, सब उच्च स्तर पहुंचे। लेकिन अध्यापन संस्कृत का आयुर्वेदाचार्य के छात्र को कराना और संस्कृत भाषा में संस्कृत विश्वविद्यालय में या कहीं वहां जाके वो गरिमा युक्त पद प्राप्त करना, दोनों बहुत अंतर है। यहाँ का आप देखा बिल्कुल स्टेपनी टाइप होता है कि भाई एक होना चाहिए, खासतौर से प्राइवेट कॉलेज दुर्दशा हो ही रखी है। तो ये उनका विषय रहा। बाद में हमारे जितने भी आचार्य, जो कि पवन जी पहले ही इशारा कर चुके हैं, बिल्कुल उन्नीदे हो रहे हैं। तो सभी विद्वानों का बड़ा श्रेष्ठ रहा। सबने संस्कृत के अंतर्गत निहित भाव के लिए अच्छी चर्चा की। हम सबका नाम उल्लेख नहीं करेंगे। हम ये जरूर बताएंगे, मदन सर का एक आया था मैसेज, उसमें लिख दिया है कि हमारे प्रोफेसर साहब कहा करते थे कि जो चक्रपाणी जी की जो सर्वकालीन स्वीकार्य जो टिप्पणी है, तो उसमें जो कि चक्रपाणी आचार्य जी संस्कृतज्ञ थे, आयुर्वेदज्ञ नहीं थे, इसलिए कतिपय स्थान ऐसे जहां पर वो मौन रह गए। उन्होंने वो रहस्य उद्घाटन नहीं किए जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक कर सकता था। और शुक्ला जी बहुत उदाहरण दिया करते थे। तो ये तो बात है, संस्कृतज्ञ भी हो, जैसे मदन जी ने कहा कि ट्रांसलेटर कैसा हो जो पूरा नहीं हो पाता है, उसमें तरीका एक ये आयुर्वेदाचार्य अच्छा संस्कृत निष्ठ हो और संस्कृत का ट्रांसलेशन करने वाला ही हो। जैसे हमारे यहाँ सुनाम धन्य हमारे गुरु जी लोग थे, प्रोफेसर अनंतराम शर्मा जी, धड़ल्ले संस्कृत बोल लेते। जब एक दिन एस डी उपाध्याय जी इंग्लिश बोलना शुरू किया, बीएचयू से आके बीएमएस और पीएचडी थे, अनंतराम जी ने उस दिन फिर संस्कृत ही बोली और संस्कृत उन्होंने सुश्रुत की टीकाएं सब कुछ किए हैं। तो ये जरूर हमारे छांगाणी जी हो गए। कितने विद्वान लोग महाराष्ट्र से लेके पूरे भारत और विश्व में फैले हुए हैं जो संस्कृतज्ञ भी हैं। उनकी सहायता लेते हुए यदि आयुर्वेदज्ञ भी साथ में बैठेंगे तो आयुर्वेद के अंदर जो निहितार्थ है, गूढ़ार्थ और निहितार्थ को निकाल सकते हैं। और उसमें हमारे पंडित प्रेमचंद शास्त्री जी की सेवाएं निश्चित रूप से अमूल्य होंगी। तो मैं समझता हूँ कि जितने हमारे विद्वत वर्ग है ये और इनसे जुड़े हुए जितना नेटवर्क है, एक सज्जन ने कहा मुझे अच्छा लगा, इन्होंने लिखा है आज अंतरजालीय संगोष्ठी वेबिनार का शब्द मैंने बहुत क्लीनली पकड़ा। अंतरजालिक संगोष्ठी शब्द दिया वेबिनार को। तो यही सब चीजें तो है, ये निकाल के ला सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। संस्कृत भाषा के आप महान पुत्र हैं, आप इसके ध्वजवाहक हैं, आप इसको बढ़ाएं। और संस्कृत भाषा के ज्ञान को रखते हुए यदि आयुर्वेद के माने और सरलीकरण में आपका योगदान मिलता है तो ये आयुर्वेद के लिए और हम सब शिक्षकों के लिए बहुत ही ये बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदनम। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सबको सम्मिलित नहीं कर पाया, आज कुछ समय ज्यादा हो गया है। ऑलरेडी हम लोग 1.5 घंटा समय के बियॉन्ड चल रहे हैं। कल से आप लोगों की आज्ञा हो तो एक प्रयोग शुरू करूं जो आज थोड़ा सा सांकेतिक था। मैं हाथ अप कर दूंगा 15 मिनट में, तो वक्ता के लिए ये एक इंडिकेशन रहेगा कि आगे के 5 मिनट में समाप्त करना है। तो ये आप लोगों की आज्ञा कोई अन्यथा भी नहीं, कोई अन्यथा नहीं लेगा इसको, बहुत सद्भाव से ही लेंगे इसको। बस वही क्षमा चाहता हूं कि मैं वो हिम्मत नहीं कर पाता बोलने की, लेकिन फिर भी जैसी मदन सर की इच्छा है, यदि कोई बोलना चाहे उसका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। पठानगढ़ साहब। यस, हमारी ये बात बीच में भी एक बार हुई थी कि ऐसा ही टाइम शेड्यूल रखने के लिए क्योंकि आपका भी और बाकी लोगों का भी समय जो है उसकी भी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए जी सर, हाँ, तो हम लोग शार्प 6 बजे शुरू कर देते हैं सर। हाँ, यस। अपने शुरू करने में अपन लोग कहीं लेट नहीं करते सर। तो टाइम जो स्पेसिफिकेशन है वो रखना है जरूरी। थैंक यू। चलो हरिओम। 12 minutes plus 3 minutes, 12 plus 3 is equal to 15 minutes। हाँ, ऐसा कर लीजिए। हाँ पवन जी अगर चाहे तो शास्त्री जी से एक तो शब्द सुने। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद जरूरी है। बिफोर वी से गुड नाइट। आपकी इंस्पायरिंग बातें सुनते सुनते मेरी नींद उड़ जाती है, मैं क्या करूं। ऐसा मत कीजिए। शास्त्री जी नमस्कार जी। हाँ, निद्रा इम्पोर्टेंट है सबको। सब आपसे थोड़ा सुने 3-4 शब्द और then we say good night। ये अपना रोज दिन होता है क्या ये वेबिनार? जी हाँ। अच्छा, तो इसके लिए बधाई। और कोई ये जो अपन वेबिनार किया है इसका कहीं रिकॉर्डिंग भी रहता है क्या?
बिल्कुल हाँ, YouTube पे रहता है, लिंक आपको भेज दी गई है। अच्छा अच्छा। तो कल वर्ल्ड यूनानी डे का है। एक्चुअली वर्ल्ड यूनानी डे 11 को था, लेकिन हम आयुर्वेद वाले डबल है तो 11 के 22 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 11 के दिन उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया था। तो ये पूरा मंथ यूनानी मंथ के रूप में कल यूनानी के हकीमों से सुनेंगे। उसके बाद इनफर्टिलिटी पे वेबिनार है, तो इनफर्टिलिटी के क्या ट्रीटमेंट्स हैं वो हम गायनेकोलॉजिस्ट से सुनेंगे। मैं सभी को आदरणीयों को अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपा कर जुड़ें, हर रोज जुड़ें, जब टाइम मिले, जब आपकी पसंद का टॉपिक हो। ये मंच को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं बस अंत में एक निवेदन करता हूँ, क्या जो मैंने विषय रखा, मैं तो एक सोशल वर्कर के रूप में काम करता हूँ और इस विषय में बहुत हजारों से अधिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन, विज्ञापन वगैरह सब मिलाए, तो अपना ये जो हेड है, लेटर हेड है, इसके ऊपर कोई रेजुलेशन जा सकता है क्या कंसर्न अथॉरिटी को? यदि बिल्कुल जा सकता है गुरुदेव। तो इसका नाम ही इंडिपेंडेंट रिसर्च इथिक्स सोसाइटी है। ये इसके लेटर पैड पे बिल्कुल जा सकता है, जैसी आप आज्ञा देंगे, क्योंकि ये तो एक सबके भलाई के काम की चीज है। जी, मैं एक प्रत्यावेदन बना के कॉपी आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ, फिर उसको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करके यदि भेजेंगे तो केवल एक बात बोलता हूँ, ऐसा ये प्रयत्नों को करना कभी विफल नहीं होता है। ऐसे बहुत उत्तराखंड में जो हमने संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिला पाए, इसी तरह के प्रयत्नों से अभी जो नई शिक्षा नीति में संस्कृत का विषय था उसमें हम त्रिभाषा सूत्र नहीं करा पाए, लेकिन स्वैच्छिक द्विभाषा सूत्र हो गया। केवल कोई भी दो भाषा, मातृभाषा अथवा अंग्रेजी, मातृभाषा अथवा संस्कृत अथवा कोई भारतीय भाषा अंग्रेजी। तो ऐसा करने से संस्कृत के लिए अवसर मिलने से भारत की सारी भाषाओं को सुदृढ़ीकरण होता है। और मातृभाषा मेरी हिंदी है, आपकी कन्नड़ होगी, वो तो हम 8वीं कक्षा तक सीख लेते हैं जितनी आवश्यक है। तो देश के हित में पूरी एक भाषाई सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से और विशेष रूप से ये आयुर्वेद की दृष्टि से जो आज अवसर मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत पवन जी और आप सब लोग, मदन जी, सबका बहुत आभारी हूँ। और प्रोफेसर अग्निहोत्री तो हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और मैं एक विद्वान अपने को नहीं मानता, एक बहुत छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूँ। और उसी रूप में मैंने अपनी सीधी बजाय, विद्वानों के भाषण तो इतने अच्छे अच्छे मिले हमको, तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर्वे भवन्तु सुखी ने तो करते ही होंगे ना पवन जी अंत में? जी हाँ, पहले स्तुति करते हैं सर हम लोग। अच्छा, प्रारंभ में ही कर देते? हाँ, प्रारंभ में ही पहले ही वो कर लेते थे। ठीक है, जैसी अपनी पद्धति है वैसा करें। अपने कार्यक्रमों में हम शांति मंत्र, कल्याण मंत्र, ऐसा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं शांति शांति। नमस्कार। और अग्निहोत्री जी को तो कल ही मिलने आता हूँ। नमस्कार नमस्कार, जुड़िएगा सभी लोग। नमस्कार जी। जगदीश्वर जी नमस्कार, क्षमा चाहता हूँ, कल मिलेंगे। अग्निहोत्री जी नमस्कार, गुड नाइट। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, प्रणाम, नमस्ते जी, नमस्ते। प्रज्ञा जी को भी नमस्कार। अब तो मैं भेंट ही नहीं हो पाती, दूर से ही होती है। दोमा जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। 9 बच्चे हैं, 9 लोगों को 9 बार कह दिए नमस्कार, हो जाएगी सबको। सिर्फ वी आर ओनली 9। आज शायद पवन जी निकल गया आज। ठीक ही है, तो टाइम। अग्निहोत्री जी, दिस इज इसको एक बार और करेंगे जी, थोड़ा विस्तार में, थोड़ा सा और संस्कृत की थोड़ा और करें, क्योंकि आज मैंने दुस्साहस किया इसीलिए। हाँ कि संस्कृत मेरा बैकग्राउंड है, अब सब छूट गया सब। अब संस्कृत पढ़ेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में तो अंग्रेजी भी चलती है। और आपकी तरफ ले आएंगे जी उत्तराखंड, सारा कुछ पूरा दुनिया को उस तरफ ले आए, थोड़ा देवभूमि की तरफ। परसों कल एनपी दुबे जी से बात आई थी आपके। हाँ जी, हाँ जी।
तो बहुत अच्छा लगा, बहुत देर आपकी विभिन्न विषयों में चर्चा हुई। उनके कुछ नोन थे जो आपके यूएस के और यूके के आपने अच्छे से रिकॉग्नाइज किया। मोरओवर सबसे अमेजिंग बात उन्होंने बता दी कि आपने उनको अपना 59 बॉर्न बताया। हाँ जी, तो उन्होंने बताया वो तो शायद 49 के बॉर्न है। हाँ जी, I was born 59, 10 साल की हाँ, व्यत्यास है। मेरा 56 है। अरे ओम, अरे मैं डेट ऑफ बर्थ इज 1756। 56। तब से बस लगे हैं। हमारे पटंगा जी उस दिन कुछ कह रहे थे कि क्या किया था आपने 86 में, कहा आपने क्या ज्वाइन किया था, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, 86 में पास आउट हो गया साइंस से। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन? हाँ, नहीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है। 86 में ग्रेजुएशन किया तो मेरा 78, तो मेरा 78 का ग्रेजुएशन है। हाँ बराबर, तभी हमारा एडमिशन था। तो खामी का हमको बड़ा बूढ़ा बना दे रहे हैं सबके सब। अरे नहीं, मैं भी अभी 63 हूँ, मतलब आपके इतना तो नहीं। आई एम 58 बॉर्न। 50 बॉर्न? 58। हाँ, तो एक दिन का फर्क पड़ता है। ज्योतिषियों के पास तो एक घंटे का डिफरेंस माना जाता है। तो 50, 58, 59 और 59 के ही हमारे पवन जी हैं। तो मेरा 56 है। हमारे दुबई जरूर 49। तो हम तो वास्तव में वयोवृद्ध हो गए हम। नहीं, आप तो एनर्जेटिक इतने हैं, आप और पवन जी। नहीं, वो तो आयुर्वेद का प्रताप है। वो तो that is really the outcome of Ayurveda.